تعالیٰ علیہ وسلم. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب ایک سر پھونکتا، سر کو تو ایک ایسی آواز آتی ہے، ایسی چیخ آتی ہے کہ جس چیخ سے جو دنیا میں آخری زمانے میں جو جیری انسانہ، جو جنات، جو ملائکہ، جو فرشتے، جو شجر، جو حجر ہے، وہ ایک چیخ کی پکار کے اندر سارے کے ساری کائنات مر جاتے. کیا ہوتی ہے؟ مر جاتے. ہمیں زندہ رہتی کہ نہیں رہتے کی، بٹ میں وہ ایک چیخ رہتی ہے، ایک سر رہتا ہے، ایک پکار، ایک آواز آتی ہے، ایک ایسی دھاچک والی آواز آتی ہے کہ وہ پڑھتے کے ساتھ آدمیاں کی کانیں بند ہو جاتی، سرا پھٹ جاتی، سب کچھ برباد ہو جاتا. ایک چیز بھی دنیا کے اندر جو جاندار چیز ہے وہ بچش نہیں سکتی، ساری پوری کی پوری فنا ہو جاتی. اس کے بعد پورے مر کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی دیکھو اس کے اندر ایسا ہے کہ خود فرشتے بھی مر جاتے. کیا ہوتی؟ وہ سر پھو کے بعد اسرائیل علیہ السلام کو اللہ حکم کرتا ہے، جبرائیل کو حکم کرتا ہے، جبرائیل اسرائیل کو بولنے کے بعد سر پھونکو گے ساتھ سر پھونکتے ہی انہوں خود کیا ہو جاتے؟ سب انتقال ہو جاتے، فرشتے بھی انتقال ہو جاتے، ملائکہ انتقال ہو جاتے، ساری کائنات انتقال ہوتے، اللہ صرف اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں رہتا، کوئی زندہ نہیں رہتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کچھ فانی، ہر چیز فنا ہونے والی. ایک چیز رہتے وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، وجہ اللہ ایک زندہ رہتا، باقی کا پورے کے پورے فنا ہو جاتا. کون کی امام صاحب کو پوچھے گا، امام صاحب کو پوچھنے میں یہ آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب کچھ فنا ہو جاتا، فنا اگر کو بولے تو برباد ہو جاتا، مر جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہتا ہے. یہ اس کا کیا اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیا رہتا، سو کیا اللہ تعالیٰ جسم رکھتا، کیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا نا بولے تو امام فرماتی کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے وہ حق فرما رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ جو باقی رہتا ہے کو بول رہا نا، وہ ہمارے امام الائمہ، ہمارے اماموں کے جد علی بن ابی طالب کا چہرہ باقی رہتا. ساری کائنات مر جاتی. یاد رکھ لو امام کی پہچان کئی کو، امام کی پہچان یاد رکھ لو، سب کچھ فنا ہو جاتا، وہ چہرہ وہ زندہ رہتا ہے. اسرائیل بھی چلے گئے، جبرائیل بھی چلے گئے، ملائکہ بھی چلے گئے، حوراں بھی چلے گئے، غلمات بھی چلے گئے، سب کچھ پوری کائنات کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کر کو ہے سب چیز فنا ہو جاتی. یہ ایک چہرہ باقی رہتا، وہ چہرے کا نام امام علی. کیا کہتا ہے؟ امام کا چہرہ باقی رہتا. کس کا یہ چہرہ؟ امام کا چہرہ باقی رہتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری سر پھونکنا. جب دوسری سر پھونکتے ہیں تو سارے لوگ اپنی خبروں کے اندر سے یا زمین کے اوپر سے یا آسمانوں میں کہاں انہوں مر کو پڑے، ہوا میں مر کو پڑے، پانی میں مر کو پڑے، جنگلہ میں مر کو پڑے، شجرہ میں مر کو پڑے، حجرہ میں مر کو پڑے، کہاں مر کو پڑے. دوسری سر جب پھونکی جاتی ہے تو امام فرماتی ہے دوسری سر جو پھونکنے والا وہ ہمارا امام الائمہ، اماموں کا بھی امام، پہلا امام مولا علی مشکل کشا، پہلا امام مولا کائنات علی مشکل کشا، وہ پھونکنے والا ہم لوگ، ہم امام ہیں. ہم جب پھر بولتے ہیں تو دوسری سر میں پورے کے پورے زندہ ہو جاتے، پورے کے پورے زندہ ہوتے. تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پورا قرآن بول رہا ہوں، یہ کیا بھی نہ پیران کی بات، نہ کوئی چاہ کے دکانے کی بات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اب مر گئے نہیں اب پھر زندہ ہوئے، دوسری سر میں زندہ ہوئے، تم اپنے اماموں کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. کس کے پیچھے؟ امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. اب امام سمجھ میں آیا تو تمہیں پیچھے کرتے. کیا کرتے ہیں؟ امام سمجھ میں آیا تو پیچھے کرتے. دیکھو کھلا قرآن میں جسے بولتا ہے امام کے پیچھے کو تو امام کے پیچھے. کس کے پیچھے؟ اب امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اگر بولے تو ہمیں کس کے پیچھے کھڑنا؟ امام کو تو تمہیں کیا سمجھتی؟ امام کو تو کون تمہیں کیا سمجھتی؟ مسجداں کے امامہ سمجھتی، مدرسے کے امامہ سمجھتی، کیا تمہارے پیر سامہ امامہ سمجھتی؟ نہیں. امام وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کا رسول بناتا. کیا بناتا ہے؟ اللہ اس کا رسول جسے امام بناتا ہے انہیں امام ہوتا سو. جیسا اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کی امامت دے کو بھیجا، انہوں ہمارے امام سارے انبیاء کو ان کی امت کے امام بنائے. کن کی امت کے؟ ان کی امت کے
आदम को उनकी उम्मत के इमाम, नूह को उनकी उम्मत के इमाम, इब्राहिम को उनकी उम्मत के इमाम, इस्माइल को उनकी उम्मत के इमाम, इसहाक को उनकी उम्मत के इमाम, शुएब को उनकी उम्मत के इमाम, याकूब को उनकी उम्मत के इमाम, अय्यूब को उनकी उम्मत के इमाम अलैहिस्सलाम, उनको सब भी क्या करता है अल्लाह ताला उनकी उम्मत के इमाम बना। मगर हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे अनबिया का इमाम बनाया। किसका बनाया? सारे अनबिया का इमाम बनाया, सरवर अनबिया बनाया। क्या बनाया? सरवर। अब उनकी अगर उम्मत चलेगी जन्नत जाना, बख्शिश होना, तो उन्होंने राब्ता क्या करते? उनके इमाम से करते। आदम की उम्मत आदम से, यूसुफ की उम्मत यूसुफ से, यूनुस की उम्मत यूनुस से, याकूब की उम्मत याकूब से, उनकी उम्मत उनसे राब्ता करते हैं। तुम्हें हमारे इमाम ना, हमें तुम्हारे साथ ज़माने में थे, तुम्हारे ऊपर का ईमान लाए थे, तुम ना हमें माने थे, तुम्हारी रहबरी में थे, हम ना बचा लो। ये सारे जब पूरे जिन्हें मिले बात क्या करते हैं? अपनी अपनी उम्मत को बचाने की कोशिश करते हैं। लास्ट में क्या करते मालूम? क्या बोलते मालूम? पूरे इमामा देख भाई हमें तुम ना बचा लेती, मगर हम ना बचाने वाला कौन कर को बोले तो मोहम्मद मुस्तफ़ा, हम ना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम फरमाती हैं कि जब इंसान मरता है, मरने के बाद फिर उन्हें जिंदा होता है, तो उसे इमाम के पीछे खड़ना। किसके पीछे खड़ना? इमाम। अब इमाम के पीछे खड़ना कर को बोले तो इमाम की पहचान रहना, इमामा कौन कर को मालूम रहना, किसे इमामा पुकारती कर को मालूम रहना। आजकल क्या होगा है, मस्जिद के इमाम को भी पुकार डालती है, जाको 2 साल मदरसे में जाको तंग करता अम्मा बाबा को फुल तंग कर डालता है। लास्ट में उसे स्कूल नहीं पढ़ता, क्या भी नहीं पढ़ता, घर में अच्छा नहीं रहता, लड़ाइयाँ कर ले रहता, आखिरी में क्या करती मालूम? अम्मा बाबा उसे ले जाको मदरसे में डाला, वैसे जज्मे को ज़्यादा ले जाको डाला देता। अब उन्हें कैसा की, ऐसा की, वैसा की, मार को की, तोड़ को की, कैसा की, उन्हें पढ़ ले को आया तो अब उन्हें तुम्हारा इमाम बन जाता है ना। वो उन्हें इमाम नहीं, उन्हें ज़कात के पैसा में, फितरे के पैसा में, लिल्लाह के पैसा में जो पढ़ को आता है, उन्हें हमारा इमाम नहीं। इमाम वो होता है जो अल्लाह उसका रसूल बनाया। ऐसा बनाया जैसा मौला अली मुश्किल कुशा को मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला को 1.25 लाख के मजमे में खड़ा को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमानी, मैं जिस का मौला अली उसका मौला। मौला को बोले तो इमाम, मौला को तो खलीफा, मौला का तो वली। क्या मौला का तो क्या मालूम? मौला के तीन माने भी आती। मौला का तो इमाम भी, मौला का तो हमारा खलीफा भी, मौला को बोले तो हमारा वली भी। ये 3 भी अगर माने जोड़े तो उसे मौला बोलते। क्या बोलते सो? अहले बैत फरमाती हैं कि मौला का माना सिर्फ मौला का तो दोस्त नहीं, मौला का तो रहबर नहीं, मौला का तो हमारा इमाम, मौला का तो हमारा वली, मौला को बोले तो हमारा खलीफा। इनके सिवा रसूल के खलीफे कौन है? रसूल के बाद जो अपनी उनकी मसनद को बैठने वाले उन्हों खलीफे। जब हम ना मालूम रहती है, पहचान रहती है, तो हमें इमाम के पीछे खड़ती है। नहीं पहचान रही करके बोले तो वो टेम्पो तुम्हें किसे पूछती? वो टेम्पो कैसा रहता है? मतलब इंसान जब मर को उठता है, अल्लाह ताला जैसा इंसान को पैदा करे, कैसा पैदा करे? कपड़े के साथ, कपड़े के बगैर, सुन लो, कपड़े के बगैर पैदा है नहीं। जब दूसरा सुर फूकता है महशर के मैदान में, सबको वो हालत में खड़ा करता है, बराना हालत में अल्लाह ताला खड़ा करता है। खड़ाने के बाद अगर इमाम की पहचान रही तो तुम्हें इमाम के पीछे खड़ती, नहीं रही तो तुम्हें किसके पीछे भी नहीं खड़ते। अगर समझो, अगर मुझे कोसी तो भी एक दरगाह मालूम, अब फ़र्ज़ कर लियो कान की एक हुनसुर में मुझे एक दरगाह मालूम, मैं 1 से 4 बार जाकर रहा तो क्या करता हूँ, तुम ना बुला ले जाको, वो दिखाता हूँ, उसके बारे में बोलता हूँ, उनके बारे में बयान करता हूँ, उनके बारे में जानता नहीं कि हम ना पहचान है उसकी। पहचान रही तो हमें दूसरा को कराई जा, पहचान नहीं रही तो हम ना कौन भी कराने वाले नहीं। उसके वास्ते ये जो महफिला, ये मजलिसा जो हमें करती है, वो आपको इमाम की पहचान। देखो तुम्हें सब बोलियांगा करते रहेगा, सब तुम्हारे अम्मा बाबा इंतकाल हो करे तो उनका करता रहेगा, शौहर इंतकाल है तो उसका करता रहेगा, किसके मिले करते रहेगा। याद रख लो, करती नहीं, किसके की तुम्हें उनके नाम के फातिहा या दरूदा संदला उर्सा क्या मिले करते रहती तुम्हें। मगर तुम ना क़यामत के रोज़ जब अल्लाह ताला मार को फिर जिंदा करता है, उन्हें हुक्म करता सो इमाम के पीछे। किसके पीछे? अब इमाम के पीछे नहीं खड़े तो क्या होता मालूम? तुम्हें परेशान हाल फिरते रहना। जब इमाम के पीछे अगर तुम्हें खड़ गए, कौन से इमाम के पीछे खड़ना? इमाम फरमाती कि हम 12 को मानने वाला,
یا 12 میں سے ایک کو ماننے والا یا 12 میں سے 2 کو ماننے، کم سے کم کوئی نہیں کوئی ایک امام کے پیچھے تو بھی ہمیں رہنا، اس کے کم سے کم ایک امام کی ہمیں ان کی پیچھے رہنا، ان کو ماننا، ان کو جاننا، ان کی معرفت رکھنا، یا تو علی کے ساتھ، یا تو حسن کے ساتھ، یا تو حسین کے ساتھ، یا تو زین العابدین کے ساتھ، یا تو محمد باقر کے ساتھ، یا تو جعفر صادق کے ساتھ، یا تو موسیٰ کاظم کے ساتھ، یا تو امام علی رضا کے ساتھ، یا امام محمد تقی کے ساتھ، یا امام علی نقی کے ساتھ، یا امام حسن عسکری کے ساتھ، نہیں تو امام زمان محمد مہدی کے ساتھ. کنی نے تو 12 میں سے تو ایک تو بھی امام کے بارے میں ہمیں پہچان رکھنا، ان کی معرفت رکھنا، ان کا علم رکھنا، ان کے بارے میں جاننا، ان کے بارے میں ہمیں دنیا کے اندر ان کے واسطے ان کے غم میں غم کرنا، ان کی خوشی میں خوشی کرے. تو کیا ہوتا ہے، ہماری نسبت کیا ہوتی ہے، بہت طاقتور ہوتی ہے، نسبت ہماری طاقتور ہوتی ہے، ہم نہ ان کے سے لگاؤ زیادہ ہوتا. اگر ہمیں نسبت برابر نہیں کھڑا ہے، ہمیں اب دیکھو اب رشتے کیسا بنتے سو رشتے، اب تمہارے گھر میں بھی بچے رہتی، بیٹا رہتی کہ بیٹا نہ رہتی کہ بچے رہتی، اب تمہیں رشتہ لگانا تو کیسا کیا کرتی، پہلے کیا کرتے، ایسا بیٹے کے رشتہ لگا لیتی، کیا کرتی، پہلے میل ملا، جاننا پہچاننا، اس کے بعد انہیں کیا کر رہا ہے چھوکرا چھوکری کیا کر رہی ہے، کیا پڑھی ہے کیا نہیں پڑھی ہے، کون سے عقیدے کی ہے، تبلیغی کی، دیوبندی کی، بریلی کی، کون سی ذات کی ہے، کون کی جماعت میں ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا کرتی ہے، کیسا کرتی ہے، لنگڑی ہے، للی ہے، کاڑی ہے، مکی ہے، کیسا ہے، یہ سب سرچ کرتی نہیں کرتے. بولو جی، چھوکری کی دور کی بات، چھوکرے کی دور کی بات، خطی میر 5 روپے کا کٹا لے گیا تو کتنے بار اٹھا کو ڈالتا انہیں، کتنے بار اٹھا کو ڈالتا کٹا، بولو 5 روپے کی خطی میر میں 50 کٹے دیکھتا، کیا دیکھتا ہے، 50 کٹے دیکھتا ہے. 50 کٹا دیکھا تو کون سا ہریا ہے، بولے کیا تھا کی رہے اٹھا لے جا رہے پیلا کر کو، بولے تو نہیں با امی پکاتے رہے تو امی مارتے گا تھا، نہیں بھان پکاتے رہے تو بھان مارتے گا تھا، جورو پکارتے رہے تو یہ اس کے اوپر سے ڈھکلالتے گا تھا. نہیں، خالی 5 روپے کے کٹے کے واسطے اتنی فکر ہے، تو 5 روپے کے کٹے کے واسطے اتنی فکر ہے، تو جب تمہیں امام کے پیچھے جانا کر کو بولو تو امام کی فکر ہے نا نہیں رہنا، نہیں کہ وہ ہریا کٹا لے جا کر رہے تو تمہیں تازہ اچھا کھانا، نہیں ذرا اس کے یہ کٹے میں چلے گا تو کیا ہوتا ہے، پیلا کھایا تو سالنے کیا کہ ذرا ٹیسٹ اوپر نیچے ہو جاتا. نہیں، خالی زبان کو رہنے کے واسطے خالی جیب تک یہاں سے یہاں تک جانا سو یتے کے واسطے اتنا ہمیں چنتی ہیں. خدا کی قسم اس کے بعد کی جو زندگی، اس کے بعد کی جو زندگی ہزاروں ہاں سال رہنے والی، جب تک اللہ رہتا ہے تب تک ہمیں رہنا. دیکھو موت ہوتی ہے، جہنم ملتے کی جنت ملتے کی نہیں، جنت والا بھی جب تک اللہ تعالیٰ ہے اس کی گنتی نہیں ہے، اس کا حساب نہیں ہے، وہ انفینٹی کر کو بولو تو لا تعداد، کوئی سوچ نہیں سکتا. جنت میں بھی انہیں زندہ رہنا نہیں، دوزخ میں بھی زندہ رہنا، 2 جگہ بھی زندہ رہنا، 2 کو بھی زندگی. دیکھو مولا علی مشکل کشا فرماتی کہ کون کی آنکھ کو پوچھا کرتا ہے موت کیا کرتا، کیا پوچھ رہا ہے، موت کیا. مولا علی فرماتی کہ موت ایک زندگی کا تھی، یہ ایک بہت سہانی زندگی کا تھی. انہیں بولتا رہتا ہے موت سہانی زندگی. پھر لوگ روتے رہتی نا، مریا تو پلاتے رہتی نا، بیزار ہو جاتی نا، دکھ میں رہتی نا، بولے تو نہیں، یہ بے عقل لوگ جو امام کی پہچان نہیں کرے، یہ لوگاں میں یہ رہتا. جسے امام کی پہچان نہیں ہے وہ لوگ موت کے واسطے ڈرتے سو، خوف کھاتے سو، روتے سو، پلاتے سو. اگر امام کی پہچان ہوگی تو خدا کی قسم موت ایک شہد سے زیادہ میٹھی چیز کرتی. جب میں سمجھا نہیں، امام مولا علی مجھے سمجھا نہیں کر بولا تو بولتی ہیں تیرے بچے ہی کیا، بولے ہو میرے بچے ہی، کہتے ہی بچے میرے 12 بچے ہی کیا، کہتے ہیں 12 بچے. تو معلوم تجھے بچہ جب ماں کی پیٹ سے آتا ہے، ماں کی پیٹ سے جب باہر آتا ہے تو روتا سو گئی کو کو بولتا ہے ہو، ہر بچہ جو بھی ماں کی پیٹ سے نکلتا باہر ہے وہ بچہ کیا ہوتا ہے، انہیں زار و خطار کا روتا. اور ایسا اگر رویا نہیں کر کو بولے تو مار کو تک لگا رلاتی، کیا کر کو رلاتی، مار کو رلاتی. جب یہ روتا نہیں بچہ، ہر بچہ کائنات کے اندر روتا سو، رو کچھ پیدا ہوتا سو. مولا فرماتی کئی کو روتا سو معلوم، جب یہ بچہ اس کی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے انہیں کیا سمجھتا ہے، یہ دنیا اس کی کیا ہے، یہ دنیا. اور جب یہ وہ دنیا سے نکل کو باہر کی دنیا میں آتا ہے تو کیا سمجھتا ہے بچہ، وہ میں مر گا کر کو سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے، میں مر کو دوسری دنیا میں آگا. جیسا دوسری دنیا میں ماں کی پیٹ اس کی دنیا 9 مہینے ایک نطفے سے لے کو، ایک مدغہ سے لے کو، ایک دانے سے لے کو
ایک بولتے نہیں پانی کے خطرے سے لوگ وہ اتنا بڑا بچہ ہاتھاں پاواں دماغاں دل پورے کے آزا پورا ہو کو ماں کی پیٹ کے بعد 9 مہینے ماں کی پیٹ میں رہا, تو انہیں کیا سمجھتا ہوں بچہ ماں کی پیٹیج دنیا کیا ہے, ماں کی پیٹیج دنیا. جب یہ ماں کی پیٹ سے باہر نکل کو پڑتا ہے تب روتا اس کہیں کر کو بولے تو بچہ اصل میں انہیں کیا سوچتا معلوم, وہ دنیا میں چھوڑ ڈالیا مرگا کر کو سمجھتا. کون سی دنیا چھوڑ والیا, ماں کی پیٹ کی دنیا چھوڑ والیا مرگا کر کو سمجھ کو روتا اس کہتا ہے. ایسا جب دنیا کے اندر سے مومن جاتا ہے, مومن مرتا ہے, تو یہ سمجھو نا کو دنیا والے نام کو روتے سو, کیا کرتی دنیا والے نام کو روتی سو, مگر اصل میں کیا ہے مومن نکلا کہ نہیں, انہیں ایسی دنیا میں قدم رکھتا ہے کہ وہ دنیا میں انہیں سوچتا رہتا میں کئی کچھ تھا سریں گا, میں آپ کو ان کے ساتھ رہتا تھا. تو مولا علی مشکل کشا فرماتی ہے کہ جو امام کی پہچان کر لیا, کس کی پہچان, امام کی پہچان کر لیا, اس کی زندگی آنے والی زندگی سب سے بہترین زندگی بہترین. اس کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا, قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی فرمایا دیکھو امام کی پہچان کرو. اور جب بھی ہمیں امام کے پیچھے اٹھتی نہیں, جب اللہ تعالیٰ محشر ہے, پل صراط ہے, نہیں میزان ہے, وہ بول کو ہونا کہتے یہ ہوتی پریشانیاں ہوتی میزان میں, پل صراط میں, سوا نیزے کے پر سورج جا جاتا سو, نفسی کا عالم رہتا سو, یہ سب چیزیں سن کو رہیں گے نا. برکت اب امام کے پیچھے اٹھنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے معلوم, جب اللہ تعالیٰ حکم کرتا تمہارے اماموں کے ساتھ آؤ کر بولا, تو ایک مولا ایک طرف رہتی, ایک طرف حسن رہتی, ایک طرف حسین رہتی, 12 کے پیچھے ان کی فوج کھڑے رہتے. کس کے پیچھے, ان کے پیچھے ان کے چاہنے والے, ان کے مریداں کھڑے رہتی, جو ان کے غلاماں رہتی, ان کے در کے کتے رہتی, ان کے پیچھے امام کی پہچان رہی تو ان کے پیچھے کھڑے. باقی کے لوگوں کو امام معلوم نہیں, انہوں پوری زندگی کیا کرے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکوٰۃ دیے, کیا کہ ایک چھوٹا موٹا 11ویں کر لے, 13ویں کر, کیا کہ ایک چھوٹے موٹے چیزاں کر لے کو, زندگی کر لے کو, بس ہماری زندگی ہے بس با کر لے, بہت جنے کیئر بھی نہیں کرتے. یاد رکھ لو, سمجھنے انہوں کو یہ نہیں کیئر نہیں کرنا ہے. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یہ قرآن ایک اہل بیت. کیا چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تمہیں اسے مضبوطی سے اگر تھامو گے, کس کے, یہ دونوں کو مضبوطی سے تھامو گے, تو یاد رکھنا تمہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے. کیا نہیں ہوتا ہے, تمہیں نماز کو پکڑو, روزے کو پکڑو, حج کو پکڑو, زکوٰۃ کو پکڑو, کسے بھی پکڑو, پیر کو پکڑو, ولیاں کو پکڑو, تمہیں کتے عاملاں کو پکڑو, کاملاں کو پکڑو, یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ گارنٹی نہیں دیکھ رہا تمہاری نجات کی, گارنٹی دے رہا سو تمہیں کسے پکڑے تو, اہل البیت کو پکڑے تو. کسے پکڑے تو, اہل بیت کو پکڑے تو کبھی گمراہ نہیں ہوتے. قرآن اور اہل بیت کو پکڑے تو کبھی گمراہ نہیں ہوتے, کسی حالت کو گمراہ نہیں ہوتے. بتاؤ کتنے جنے تمہیں اہل بیت کو پکڑ دو, کہتے جنہیں اہل بیت کو پکڑ دو. جب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت, جو کام کرے, جو انہوں دین کا کام کرے, اس کی تمہیں اجر دینا, اس کی اگر عوض میں کیا تھی تمہیں ان کو بولتے نہیں, اگر ہمیں کس کرنے تھی ٹیوشن لیے تو کیا دیتی ہمیں, کیا دیتی, جلدی بولتے رہو, فیس دیتی نہیں, کیا تمہیں ڈرائنگ سیکھے تو اسے ہمیں فیس دیتی, کو سے تمہیں مدرسے گئے تو, اسکول کو گئے تو فیس دیتی, یہاں تک اماں بیٹے کو بڑا کر کو چھوڑ والی کر کو بولے تو, کمالے کا کر کو بولے تو انہیں بھی فیس لیتے نہیں دینا چاہو, جو بھی نہیں بڑا کرتی اس کئی کو کماک ڈالیں دے کر, بچپن میں انہیں کماک ڈالیا نہیں, ماں محنت کر کو ڈالی, اب بڑھاپے میں انہیں کیا کرنا, بچہ کر کو دینا. ہر چیز کو بھی یہ کرنا ضروری. اللہ کے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کرے نہیں, دین دیا کر کو بولے تو انہیں فیس دینا. نہیں فیس نہیں دیا تو کیا ہوتا ہے, یاد رکھ لو, علم نہیں, ایک شریعت کی بات بول دو. تمہیں کپڑے لیے, کیا لیے, کپڑے لیے, بھاری کپڑے لیے, 10,000 کا جوڑا کی, 50,000 جوڑا کی, 5 لاکھ کا جوڑا کی, لے سلانے ڈالے, سینے کے پیسے دیے نہیں, کیا نہیں دیے, سینے کے پیسے نہیں دیے, سوٹ پہن لیا آگے, اس کے اندر تمہیں پہننے کو حج کو بھی جا رہی, تمہیں عمرے بھی کر رہی, تمہیں نمازاں بھی پڑھ رہی, تمہیں محفلاں بھی کر رہی, تمہیں مجلساں بھی کر رہی, کچھ بھی کرے تو بھی کیا ہوتا, مطلب شریعت کا حکم کیا ہے, جب تک وہ انسان کی اجرت نہیں تو, اجرت قرض لے لیا واپس دے دیا وہ بات الگ, اگر نہیں دینے کا تم نہ دل ہے, اسے ڈبانے کا دل ہے, یا اسے پیسے نہیں دینے کا دل ہے, تمہیں وہ کپڑے پہن لیے تو
शरीयत क्या हुक्म देती है, मतलब वो कपड़ा पहन को तो नमाज पढ़ा तो, रोज़ा रखा तो, हज कर्या तो, ज़कात दिया तो, 11वां कर्या तो, संदला कर्या तो, उरुस कर्या तो, क्या कर्या तो भी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, गासिब कता, क्या कहता है, गासिब कता, क्या गसब कर्या माल, किसका, गसब माल से तू इबादत अच्छी कर्या तो भी गासिब, अल्लाह ताला कैंसिल। अगर मामूली सा अगर उसकी उजरत नहीं दे को चोरी से ले लेगा को तू पेल लाता अगर तू बोले तो तेरी कोई इबादत कबूलिश नहीं। जब अलल ऐलान कुरान के अंदर अल्लाह ताला पुकार पुकार कर पूछ रहा है, अगर मेरी अजर रिसालत रसूल की देना है, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, नहीं चाहता मेरा रसूल कुछ भी सिवाय मेरे खराबतदारों से मोहब्बत मवद्दत, तो क्या देना हम तुम्हें गसब कर को नहीं करी सो। अब जितने भी अजमिया करे नहीं ऐसा बैठ गए तो उन्होंने इबादत कर रही वो देखो न को, रियाजत कर रही वो देखो न को। देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने दिए क्या वापस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अजर दिए कि उनका कलमा पढ़ना को तो भी हमें अजर देखो पढ़ना, क्या पढ़ना को तो, अगर हमें कपड़े ले रही तो हमें सिलाने के वास्ते पैसे देखो ले लेगा को पहने तो तब हम ना वो हलाल का होता बराबर है। मामूली से कपड़े ले लेगा को दिए करके बोला तो हलाल का नहीं देखो पहने तो हलाल नहीं होता, हराम हो जाती है, हमारी सारी इबादत हराम हो जाती है, ना वजू चढ़ता ना गुस्ल चढ़ता ना नमाज चढ़ती है। तुम्हें कितने भी सजदे में जाको कर लियो करके बोला तो अल्लाह ताला क्या बोलता है, तू गसब कपड़े में पहना, गसब जगह के ऊपर पड़ा तो गासिब तू, तेरे से कोई इबादत में कबूल नहीं करता। अब ये कुरान में जब हुक्म आ गया तो अल्लाह ताला फरमाता है तो अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, अजर दियो करके बोले तो कैसा देती है हम तो, अजर नहीं सो तुम्हें इबादत करे तो होता है। अब कहते कि जने अजर नहीं सो 11वां कर रही है, अजर नहीं तो 12वां कर रही है, अजर नहीं सो नमाज पढ़ रही, अजर नहीं तो रोजा दे रही, अजर नहीं तो ये दे रही। अजर पूछ रहा है सो क्या, किनकी मोहब्बत, किनकी मोहब्बत, किसकी मोहब्बत, खराबतदारों की अहले बैत की मोहब्बत पूछ रहा सो अजर। तुमने यहाँ से जाती सऊदी को जाती, इंडिया के पैसे रख ले जाती, नोटा रख ले जाको, तुम्हें चाय पीना करके बोल को दिए तो 500 की नोट 10 की छिड़ेंगे चाय, 20 की छिड़ेंगे चाय, उन्हें क्या बोलता उठा फिर नहीं। सऊदी के मैं रियाल ले लगा तो 100 रियाल दे तो 100 रियाल करके बोला तो मामूली पैसा नहीं, कम से कम 20 पर 2 रुपए की 24 रुपए की एक रियाल, 100 रियाल दिया तो भी एक चाय दे रहे करके बोले तो 8 रुपए की 10 रुपए की चाय देता है। नको कथा कि हम ना कोसा देना वो देना, हम ना कोसा चलता है हमारे मुल्क के अंदर वो देना। इस्लाम के अंदर अल्लाह के पास रसूल के पास आखिरत में चलता सोचे खराबतदार की मोहब्बत, किसकी मोहब्बत, तुम्हें खराबतदार की मोहब्बत की जगह मैं ले जाको मेरी पीर साहब की मोहब्बत देता हूँ, नहीं मैं मेरी जोरू की मोहब्बत देता हूँ, मेरे बच्चों को पालरू से देता हूँ, मैं क्या की फातिहा कर सो देता हूँ, मैं रोज़े देता हूँ, मैं ज़कात देता हूँ, मैं हज देता हूँ तो लेती। जब मामूली से 8 आने की चाह तुम ना हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के पैसे नहीं दिए तो नहीं चलती करो बोले तो तुम्हें आखिरत के अंदर जो अल्लाह ताला खुला ऐलान तुम्हारे घर में भी मेरे घर में भी 70 पर 3 फिरक़े के घर में भी वज कुरान है नहीं, अहले सुन्नत वाले ने भी वज कुरान है, अहले तशय्युअ वाले ने भी वज कुरान है, खुला खुला को बोल रहा ना अल्लाह ताला मुझे मैं चाहता सोच अजर के बदली रसूल की कलमा पढ़ने से बदली तो कलमा पढ़ रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, पहला फर्ज पढ़ रही नहीं पढ़ रही, ऐसा नहीं पढ़ना। देखो कितने की फिल्म स्टार पढ़ती, कितने की यहूदियाँ पढ़ती, कितने की नसारा पढ़ती, कितने की थिएटर वाले पढ़ती, कितने की ड्रामे वाले पढ़ती, नहीं पढ़ते क्या, पढ़ती नहीं पढ़ते। अब पर्दा ले तो हो जाती क्या। अब रसूल की मैं हदीस बोलता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो फला पालो, फला को तो जन्नत पालो, अरे हदीस बात तो। अब कितने जने पढ़े, कितने की काफिरा पढ़े, कितने की मुशरिका पढ़े, कितने मुनाफिका भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, नहीं हर जना भी पढ़ा, शैतान भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, इब्लीस भी पढ़ा, कौन नहीं पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आज दुनिया के अंदर कितने जने नहीं सुनते हैं अजान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह करके बोले तो गैर कौमा उरूस पुकारती ला इलाहा इल्लल्लाह कूगिल्ला इवत कूगिल्ला, कितने जने आपको पूछते हैं। अब मैं हदीस बोला को तुम्हें भी जन्नत को आ जाती तो आ जाते हैं, कई को नहीं आते, कई को नहीं आता। मैं तो रसूल की हदीस क्या है सो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो जन्नत को जाओ, रसूल एक बोल रही, अब तुम्हें कहीं को नहीं जाते करके बोल रही सो।
कई को अब रसूल बोल डाले बात जाना नहीं कहे जाना नहीं जाना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ डाले तो उन्हें जन्नत को जाना। अब नहीं जाता कर को तुम्हें कैसा बोलती? देखो इतना फर्क है। सो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो उन्हें सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कि ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू करके बोले, मगर साथ में ये भी बोले कि खुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, तू जो मोहब्बत मेरे खराबतदारों के साथ रखो वो अजर दे। या तो तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो वो अल्लाह रसूल तक जाता सो, कहाँ तक जाता सो? नहीं तो खाली जबान के अंदर खाली वो पुकार वो कैसी वो खाली जबान के अंदर पुकार वो जाती नहीं, पहुंचती नहीं तेरी शहादत। तेरी शहादत पहुंचना तो अल्लाह ताला के पास, उसके रसूल के पास क्या करना? तू अजर रिसालत देना, तू पेमेंट देना। पिक्चर आया पिक्चर जाती ना पिक्चर तुम सभी हाँ हूँ कहता है पिक्चर जाती नहीं। तुम्हें मामूली से 100 की 150 की टिकट में जाना करके बोलो तो अंदर घुसे तो टिकट लेना नहीं लेना? क्या नहीं ले को क्या करता? भगा भगा टार्च डाल को मार को भगाता, होना होना को भी छोड़ता है अंदर रे, और दिखाता से भी कहे तो मालूम हो जाता उनको इन्हें टिकट नहीं से अंदर घुसा कर, टिकट नहीं सो अंदर घुसा। उन्हें हाथ से छोना को भगाता मगर नहीं भगाता। कहीं को नहीं भगाता? दूसरे को भी उसे क्या करता सो तालीम देता सो। क्या देता सो? दूसरे को भी तालीम देता है। क्या देता? तालीम देता है कि अगर टिकट नहीं सो घुसे कर को बोले तो डंडे के मारा कैसे पड़ती कर को। अल्लाह ताला भी क्या करता है एहसास तुम ना मुलाजा दे ले को जाता मुरीदां को क्या देता है? तुम्हें खान खाया खोल लिए, तुम्हें बैयत ले लिए, तुम्हें सब कुछ कर लिए, तुम्हें कर ले को क्या करता है? तुम ना मुलाजा दे ले को जा रहा है, खान खा खोले तुम्हें क्या करने के वास्ते? अजर रिसालत देने के वास्ते। क्या करने के वास्ते? ये हमें ये दिए तो ये हमारा कबूल होता सो, ये नहीं दिए तो तुम ना मामूली से एक भेड़ा के पिक्चर में तुम ना जरा खुद बिठाई नहीं तो तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत में बिठाओगा तुम ना। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे नहीं बिठाता क्या बोलो? देखो खान खा वो जगह जहां पर अजर रिसालत पेमेंट देते सो। क्या देते सो? टिकट काउंटर बाहर रहता है कभी भी क्या रहता है? टिकट देना बाद में जाको देखना। ऐसा पहले मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत अहले बैत, मवद्दत रसूल, मवद्दत अहले बैत कर को उसके बाद तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो तब अल्लाह का रसूल फरमाता सो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू कहता सो। क्या रहता सो? तुफलिहू। वो जबान भी वैसी पाक रखना, वो ईमान भी वैसा पाक रखना, वो अकीदा भी वैसा पाक रखना, वो सीना भी वैसा पाक रखना और वो दिमाग भी वैसा पाक करना। या अल्लाह ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पहले हमें ये सोच लेना कि ला इलाहा की बिना हुसैन है करो, ला इलाहा इल्लल्लाह की बिना हुसैन है करो। अगर हुसैन नहीं रहता तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर देखो यजीदी में, हुसैनिया में, इमाम को मानने वाले में और हजाम को मानने वाले में, इमाम को मानने वाले में, हजाम को मानने वाले में फर्क क्या है अगर बोलो तो इमाम को मानने वाला अजर दे को पढ़ता, अजर दे को पढ़ता, अपने जबान से, अपने दिल से, अपने आमाल से दे को इमाम को खुश करा को, चाहे इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे या इमाम अली होंगे या 14 के 14 मासूमीन होंगे, हमें इनको दे को पहले खुश करती, पहले इनको सलाम कर को हमें यह मानते सो कि तुम्हें अगर तुम्हारे रब को मानने वाले, किनके रब को? हम ना मालूम अल्लाह एक है कर को, हम ना मालूम यह है काबा है कर को, सब कुछ है, मगर हमें ऐसा नहीं मानते। कैसा नहीं मानते? ऐसा डायरेक्ट नहीं मानते। हम ना अल्लाह अक्ल सलीम जाए, हम ना मालूम अल्लाह एक है, काबा एक है, हम ना नमाज पढ़ना मालूम, रोज़ा रखना मालूम, हज करना मालूम, ज़कात देना मालूम, हमें वैसा नहीं जानते सो। हमें कैसा जानते सो? या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या इमाम अली, ऐ मेरे 14, ये हमें जो कुछ भी करना तुम्हारे तबस्सुल से हमें करे तो हमें मानते सो। किसे? अगर अल्लाह ताला को भी माने तो किसे मानना मालूम? मोहम्मद मुस्तफ़ा से मानना। किससे मानना? किसे मानना? मोहम्मद मुस्तफ़ा से। पहले क्या करते मालूम? अरब के आदमी वो लात, उज़्ज़ा, उबुल, ये सभी ही नहीं उनके बुतान के नाम, उन्हों अल्लाह या नहीं, उन्हों अल्लाह नहीं, अल्लाह ताला को क्या करते उन्हों जब भी बारिश होना तो उसे क्या करते हैं? एक बुत रहता हुबुल करो,
हुबुल को ले जाकर मैदान में क्या करते हैं, इस्तिगासा करते हैं, या अल्लाह, कैसा देखो कुरान हदीस में आता सो, या अल्लाह तू इस हुबुल के सदक़े में बारिश बरसा कर। मतलब क्या, वो हुबुल है मगर मानते किसे, बोलो जी, नहीं, लात है, उज्जा है, वो भी उसे उज्जा बच्चे होना उज्जा करने जाकर पूछते हैं, बड़ा है को, या अल्लाह इसके सदक़े में मुझे बच्चे दे करते, किसे पूछ रही सो, अब मानते नहीं थे अल्लाह को, उन्होंने मक्के वाले मानते नहीं थे, फिर रसूलुल्लाह को क्या पढ़ा सो, जब अल्लाह को मानते थे उन्होंने 360 बुता रखो भी अल्लाह को मानते थे उन्होंने, मानते नहीं थे, नहीं, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मनवाए सो, इतना फर्क है सो। देखो 360 रखो अल्लाह को मानने वाला तब भी उन्हें मुशरिक नहीं, 360 रखो अल्लाह को मानने वाला मुशरिक, मुसलमान उसे बोलती तो एक मोहम्मद को मान को अल्लाह को मानने वाला मुसलमान, एक मोहम्मद को मान को वाला, पहले उनको मानना, पहले उनको मानना और उसके बाद में अल्लाह ताला को जानना, उसे बोलते उस मुसलमान। अगर तुम्हें ये रूट में गए करके बोलो तो तुम्हें क्या हो जाती, मुर्तद, तुम्हें क्या हो जाती, तुम्हें मुशरिक हो जाती, दोज़खी हो जाती। वो चल्ला को मान रही सुनो भी, वो चल्ला को उन्हों भी मान रही सुनो, मगर कैसा मालूम रूट कैसा है, यहाँ रूट में मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं, ये रूट में मोहम्मद मुस्तफ़ा है। कौन से रूट में, मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती सो, देखो मंजे मान को मेरे अल्लाह को मानने वाले, पहले मंजे मानने वाले मेरे दरवाजे अली को मानो, मेरे हसन को मानो, मेरे हुसैन को मानो, मेरी जहरा से मानो, पूरे मेरे 12 को 12 मानो, तुम्हारे जमाने में कैसा कैसा आती उनको मानो, उसके बाद मंजे माने सर का, उसके बाद अल्लाह को माने सर। तुम्हें ये छोड़ को माने तो तुम्हें किसे भी माने, तुम्हें छोड़ को माने तो किसे भी माने, बता फर्क है सो, न मानने वाले में नहीं मानने वाले। बरकत ये कान खोल को सुन लो, जो भी खानखा रखते नहीं, खानखा क्या चीज़ है, खाली मदद जोरो दो जने आपको बैठ जाना सुने, मैसूर के में देखो, ये अकीदा बिल्ड करना, क्या करना, अकीदा क्या है, ये हमें खोली सो कहीं को खान खाया, ये इमाम की पहचान के वास्ते, उन्हें हाफिज साहब है कि उन्हें मौली साहब है कि उन्हें कहता मुफ्ती है कि क्या है कि, मगर उसके पास इमाम की पहचान नहीं है। किसकी पहचान नहीं है, इमाम की पहचान नहीं है। अगर इमाम की पहचान नहीं रहे तो मालूम उन्हें हजाम क्या है, जब इमाम के पीछे उठती नहीं, इमाम के पीछे उठती हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, कुरान फरमाता है कि जो भी सवाल होता है इमाम से पूछता कहता है, अल्लाह क्या पूछता कहता है, क्या है इनकी हालत, क्या है तुम्हारी हालत, क्या है उनकी हालत, किनकी हालत है, तुम्हें इमाम तुम्हारे पीछे कितने जने ही, उनको नहीं सवाल, खाली देखता अल्लाह ताला इमाम को, किसे देखता है, इमाम को देखता, पीछे क्या तभी हो जाए, उन्हें कमजोर रहेगा, उन्हें बेबस रहेगा, उन्हें गुनाहगार रहेगा, खता कर रहेगा, उन्हें पहचानना सो खाली इमाम को। अब वो इमाम के पीछे है, मौला के पीछे, मौला अली के पीछे, या मौला हसन के पीछे, या मौला हुसैन के पीछे, कौन से भी एक इमाम मूसा काजिम के पीछे, अल्लाह ताला क्या देखता मालूम, इमाम के पीछे मेरा ऑर्डर उनको खड़गा, उन्हें बोलता है इमाम को, इमाम तुम्हारी जन्नत, तुम्हें जन्नत को बुला लग जाओ। अगर तुम्हें इमाम के पीछे नहीं उठ रही, हर एक अफराद को एक एक चुन चुन को पुकारता कर, क्या करता कहता है, हर इंसान को तेरा चुन चुन को हिसाब किताब, क्या हिसाब किताब, वो ही नहीं बैठी नहीं, दो जने फरिश्ते किरामन कातिबिन को, तेरा किताब ला, तेरी किताब ला, तू क्या करे, वो सेकंड क्या करे, जवानी क्या करे, बुढ़ापा क्या करे, वहाँ कैसा करे, ये कैसा करे, वो पैसे कैसे कमाए, वहाँ कैसा खर्चा करे, जोरू को क्या करे, बच्चा को क्या करे, मस्जिद को क्या करे, तू क्या करे, ऐसे ऐसे हिसाब आप पूछता करते हैं। खुदा की कसम खाली हिसाब पूछने के वास्ते खाली आधा 1 घंटा जिक्र कराता सो। ऐसे ही मुरीदा धन के मन तोप्पे बैठे जरा बैठ जाते, कैसा तोप्पे बैठे सर का, तोप्पा रहता नहीं, वो गोबर का तोप्पा कैसा पड़ता, तोप्पा बैठे जरा पड़ जाता। जय तुम्हें जत्ता खुद खड़ती, तुम्हें यह फिक्र करना पाँव में दर्द आता करको, 50,000 साल खड़ना ना, कैसा खड़ती तप्पे, नीचे बैठे तो नीचे पेंदी पूरी लाल हो जाएगी ना, वो सी जमीन रहती है नीचे, तांबे की, तांबा को तो क्या पित्तल जय गरम हो को वो तांबे की कलर की हो जाती सो, क्या हो जाती सो, तुम्हें भी ऐसे ही तांबे की जमीन को तो पहले तांबा खिकोर में बैठ जाती मुरीदा, हाँ से भी खिकोर लेके चल जूंगा करो, मालूम, हाँ खाली केजी 500 रुपये करो, स्क्रैप वाले भी रेडी हो जाती, वैसे छतरा ही हमारा तांबे की करको बोले तो जमीन गर्म हो को लाल वैसी रहती सो, कैसा लाल ऐसी रहती सो,
बात तुम्हें यहाँ खड़े नहीं करो बोला तो वहाँ पेन जान जलती बात कहाँ जलती सीधी सीधी बात बता होता सो कि देखो अब तुम्हें बोलते ना पाँव जलते नहीं क्या हमारे को देखो इमाम को मानने वाला, इमाम के नक्शे कदम को चलने वाला, इमाम की तरफ आने वाला, इमाम की महफिलों को आने वाला, इमाम की महफिलों में जाने वाला, उसके वास्ते उन्हें हलने वाला, चलने वाला, डुलने वाला, अपने पाँव को उस तरफ ले को जाने वाला। अब तुम्हें खान खा को आए, किसकी महफिल को आए? इमाम की महफिल को आए। हर टाइम को भी कौन से तो भी इमाम की महफिल चलती नहीं, कौन से ना कौन से हमें इमाम की बात करती। तुम्हें आ रही किसकी तरफ? इमाम हसन हुसैन के घर की तरफ। तुम्हारा कदम तुम्हें ले लग जारी नहीं, खुदा की कसम जो कदम इमाम की तरफ चला, जो कदम इमाम की तरफ चला, जो पैर इमाम की तरफ बढ़ा, खुदा की कसम उसे कत्ती पित्तल जैसी जमीन हो को लाल हो को अंगार के अंदर आ जाए, खुदा की कसम उसका तलवा भी जलता नहीं, उसके तलवे की बाल भी नहीं जलता, तलवे का बाल भी ना, नाखून तक भी उसे कुछ भी नहीं होते, नाखून तक भी कुछ भी नहीं होते। देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अंगार में डाले गए, किस में डाले? कौन से अंगार में? नमरूद अंगार बनाया, अंगार में डाल को तकरीबन कितने की दिन वो अंगार रेडी करे, 40 दिन की 50 दिन की रेडी करेगा। मिंजनिक बना को ले जाको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले जाओ कहाँ डाले? अंगार में डाले। कितने दिन डाले मालूम? 1-2 दिन नहीं, तकरीबन 40 दिन। कितने दिन? रिवायत में आता 40 दिन डालेगा। चलो 40 दिन डाले कि 4 दिन डाले कि 3 दिन डाले कि कितना हो तो ना भुनने के वास्ते इंसान को। जब अल्लाह ताला गुलजार बनाया आग को, इमाम को, बाद में वापस निकलती इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वापस निकले करके बोले तो पूरे आदमी परेशान हो जाते। क्या परेशान हो जाते हैं? जरे जने 3 ग्रुप रहती कहते हैं। एक नमरूद की सपोर्ट, एक हमारा जो नमरूद जो करे पीर साहब, हमारा नमरूद को पीर साहब मानने वाला, एक इब्राहिम को पीर साहब मानने वाला, रहबर मानने वाले, इमाम मानने वाले, एक नमरूद को इमाम मानने वाले, और एक टीम क्या करके बोला तो गुम्पले गोविंदा। अगर नमरूद जीता तो ऐसे रहती बीच में खड़को मेरा बेड़ा सेम हमारे तरह मुरीदान सरकार करेक्ट बीच में खड़े रहते। वजन कहाँ है? फट के मन वहां गिरती। क्या रहता? फट के मन वहां गिरती, हंगे भी हिंगे भी। कैसा? कब कहाँ वजन पड़ता है वहां गिर जाते सो, कहाँ वजन पड़ता है वहां गिर जाते सो। ऐसे 3 ग्रुप कहाँ भी देखे तो भी इब्राहिम जमाने में भी वैसे थे। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकले तो वो 3rd ग्रुप है नहीं, हिंगे भी होंगे भी बिंगे वो दुलमुल यकीन वाले, उन आको देखती कहते ऐसा ऐसा छीको क्या भी जादू भी कर डालेगा, जिसम है क्या सभी की खाली खाली फोटो क्या करो तुम करते एक साथ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा बोलते क्या देख रही है? नहीं इब्राहिम तुम्हें मानने वाले। मैं बोलते हैं मुझे मालूम पूरा बैठ को पूरा देख लेता मैं, पूरा पिक्चर है बैठ को अल्लाह स्क्रीना लगा दिया था अंदर, कहाँ स्क्रीना लगाया था, पूरा देखा मैं। तुम्हें कौन, इनू कौन और तुम्हें कौन, तुम्हें ऐसे आदमी कहाँ से ग्रुप ज्यादा है, कहाँ उसकी ज्यादा चमत्कार वहाँ नमस्कार मारने वाले है। अगर मैं मर जाता तो नमरूद जय कहते हैं, मैं जी डाले अगर को बोले तो आप मुझे जय करी सो। तुम्हें मेरे पर इस दिल से ईमान नहीं लाए तो मैं खाली क्या अगर बोले तो तुम तो अपने मतलब के ईमान लाई सो। दूर की बात मेरा जिस्म की, दूर की बात देख मेरा जूता इसका उठा को दिखाती कहता है, मेरा जूते का तस्मा भी जलिया नहीं करते। क्या? जूते का लेस पहले जमाने में वो जूता बन को क्या करते, वो इससे लेदर से ये कर लेते, जूते का तस्मा भी बिना नहीं करते। अब मानने वाले उसमें से एक मानने वाला आया इब्राहिम को, आको पाँव पकड़ को, यहाँ इमाम तो हमारे नबी बच गए, मैं खुशी ये वो बोल को, तब चल कर बोले मैं इमाम बोलती कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछता कहता मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसा तुम्हें बच गए, क्या वैसा वजीफा था, कैसा वो जिक्र था करके बोले तो बोलती कहते कायनात का रहबर, इमामों का इमाम, अनबिया का मददगार मेरे पास आया, अनबिया का मददगार मेरे पास आया। जैसा मैं गिरले था फौरन अल्लाह ताला से दुआ करा, या अल्लाह मदद कर। आज नमरूद मुझे आग में डाल को जला को क्या दिखा रहा, उन्हें खुदा कर को बन जाता। आज तुझे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला, तेरा कलमा में पूरी दुनिया में पढ़ाने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, मैं तेरा खलील, मैं तेरा दोस्त, तू बचा ले मुझे आको, तुझे वास्ता वो पाक 5 नामा का, क्या वो 5 पाक नामा जिसके सदक़े में तू आदम अलैहिस्सलाम को नजात दिया, जिसके सदक़े में नूह अलैहिस्सलाम को नजात दिया, सारे मेरे से पहले आने वाले 70,000 अनबिया की मदद करा। या अल्लाह उस मददगार का वास्ता मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर को जैसा बोला
एक नूरानी घोड़ा आया करता, अंगार के अंदर नूरानी घोड़ा आया करता। आते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरते गिरते अपनी उंगली से थाम को बोला करता है, ऐ इब्राहिम तू ये काम कर, तू ये जिक्र कर। क्या जिक्र कर? ये मैं जो जिक्र कर दूं वो जिक्र कर। ये जिक्र की बरकत से ये आग तुझे गुलजार हो जाती है, ये आग तुझे गुलजार हो जाती है। ऐसा गुलजार हो जाती है कि ना तुझे इतनी ठंडी होती है कि तू ठंड से कांप को मर जाती, ना इतनी गर्म रहती है कि तुम्हें गर्मी से मर जाती। तुम ना सलामती के साथ, कैसे सलामती के साथ मैं एक जिक्र देतूं जो कायनात के अंदर जो भी करया उन्हें सलामती के साथ दुनिया भी करया आखिरत भी करया। क्या वो जिक्र करके बोले तो बोलती कहते है, तुम मेरा इमाम का नाम, मैं इमाम हूँ, मैं इमाम हूँ, मेरा नाम अली बिन अबी तालिब है, तुम मेरा जिक्र करो, या अलीयुन या अली का जिक्र करो। गए नमरूद की आग में या अलीयुन या अली का, किसका जिक्र? इमाम का जिक्र। किसका जिक्र? इमाम का जिक्र। इमाम के जिक्र में अंगार के अंदर भी पढ़ को 40 दिन भी इब्राहिम जैसा नबी उसकी जूते की लेस नहीं, क्या हुई? जूते की लेस ही नहीं निकली कर को, जली नहीं कर को। बोला तो खुदा की कसम जो इमामों के साथ में 12 के 12 इमाम को याद करने वाला, 12 के 12 इमाम की मोहब्बत करने वाला, उनकी गम में गम, उनकी खुशी में खुशी करने वाला, उनको खुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा करने वाला, खुदा की कसम उन्हें जलता है, उन्हें जलता है। ये यकीन है, ये खान खाए में करते सो, ये बाकी की जगह को नहीं, खाली ब्लैक के टिकटा लगो। यहाँ सभी कैसा आना मालूम, डबल खरीद को आना सो। क्या करना सो? डबल खरीद को आना। काम रहा, धंधा रहा, थूक को छोड़ को आना सो। जैसा पिक्चर अच्छा रहा तो तुम्हें ब्लैक में ले जाती टिकटा, लग जाती नहीं लग जाते कि तुम ना सुकून मिलता। तुम्हारे हीरो को देखे तो नहीं, तुम्हारी हीरोइन को देखे तो बोलो जी है सच की जाने, डबल डबल ब्लैक, ट्रिपल ट्रिपल ब्लैक को ले उसे याद रखो। जब दुनिया के अंदर तुम ना ये भिर के धेड़ा चंबारा को देखे तो तुम ना जहन्नम को वो देखे, क्या तो तुम ना जन्नत मिल रही है, खाली नफ्स को तुम ना सुकून मिल रहा। तुम ना अगर खुदा की कसम सही में ईमान अगर तुम्हारा सुकून का होना, जिंदगी सुकून को रहना अगर बोलो तो ये 12 इमाम, ये हीरोओं को बनाओ, ये हीरो में आओ तुम नहीं आओ करके बोलो तो काम धंधा शादियाँ, किसकी की खतना का रस्म, क्या करने जाता, क्या चमड़ा खाने जाता, क्या खतना का क्या मेरे बेटा था जिंदगी में। कई को तभी बेइज्जत दिए, कई को तभी क्या सोची तुम्हें सभी दूसरे छपरान चलाते ना, वैसा सिलसिला चला रही मेरे को। हमें जो चला रही है कुरान के ऊपर चला रही है। किसके ऊपर चला रही है? हमारा हर मुरीद भी इमाम की पहचान रखना। किसकी पहचान रखना? इमाम की पहचान। देखो इमाम मूसा काजिम, क्या इमाम मालूम, एक बार इमाम मूसा काजिम उनके मुरीद के साथ जा रही, कहाँ जा रही? एक जगह से दूसरी जगह जा रही, दूसरे गांव को, यहाँ से निकले मदीने से निकल को बसरा जा रही थी। अब बीच में वो जमाने में पूरे जंगल, इमाम अपने घोड़े के ऊपर जा रही, पीछे उनके साथ में एक मुरीद, सामने से एक भेड़िया आया। क्या आया? जैसा भेड़े आया आको सामने खड़ को हुर्र करके घुराया, घुराते एक साथ पीछे मुरीद हजम, पीछे मुरीद की करके बोला तो अब उन्हें भी एक सूचना नहीं, जान रही तो मैं बचा लेता हूँ। क्या करे, सीधा गया कि नहीं कोसे की झाड़ के पीछे की पत्थर के पीछे जाको छप गया। अब इमाम बढ़ते बढ़ते सामने इसके पास जा रही, किसके पास जा रही है? वो भेड़े के पास जा रही। भेड़े के पास गए कि नहीं, इमाम अपने घोड़े से मुंह सामने लेती है, मुंह सामने लेको भेड़े को कुछ बोल रही था। भेड़िया बात कर रहा था, इमाम बात कर रही था, मूसा काजिम भेड़िया बात कर रहा था। बात करने के बाद इन्हें झाड़ के पीछे खड़ा खड़ा अब उसे जरा हिम्मत आ रही, क्या आ रही है? मेरे इमाम में दम है कि तो चमत्कार कुछ नमस्कार करते सो नहीं, यकीन करके बोले तो खुदा की कसम क्या तभी हो जाते। हमें जो 12 को दिखी, जो 14 को दिखी, खुदा की कसम इनके सिवा कोई कायनात में है नहीं था परफेक्ट। इन्हों सब जने हाथ देने वाले, खुदा की कसम इन्हों हमारे हाथ की इज्जत रखने वाले, इन्हों सभी इन्हों कायनात के अंदर सबसे बड़ी इज्जत रखने वाले। हुसैन बोलते नहीं सिर दे डाले मगर हाथ नहीं दिया इज्जत नहीं, कि उम्मत को अगर उन्होंने हाथ दे डाले तो खुदा की कसम ये सारा उम्मत ही बर्बाद हो जाती। इमाम बात कर रहे हैं, बात करने के बाद जरा हिम्मत है, इन्हें सामने ले लो को अपना खच्चर सामने आया, हल्लू हल्लू सामने आया तो वो भेड़िया फिर वापस गया, फिर पलटा कि नहीं वापस जाता, पलटता कहते फिर पुकारता कहते, पलटता कहते फिर पुकारता, इमाम अल्लाहुम्मा आमीन कहते, फिर जाता कहते जरा इधर, फिर पुकारता कहते अल्लाहुम्मा आमीन करो, फिर जरूर इधर आया तो पूरे भेड़िया आ जाती कहते, फिर अल्लाहुम्मा पूरे पुकारती कहते, फिर अल्लाहुम्मा आमीन कहते, फिर जरी दूर जाता कहता, फिर जोर जोर से आवाज़, पूरे जंगल के शेरा बागा
सब निकल को आवाज़ करते कहते हैं इमाम अल्लाहुम्मा आमीन करते 7 बार ऐसा आया तो पूरा जंगल के जंगली जानवर जंगल के पूरे जंगली जानवर 7वीं मर्तबा पूरा जंगल जम जाता कहता है वहां से पूरे मिला को आवाज पुकारती कहता है पुकारे तो इमाम हाथ उठा को अल्लाहुम्मा आमीन कहते इन्हें परेशान हो को सामने आको इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सामने आको बोलता कहता है इमाम ये क्या हुआ सो इमाम ऐसा खतरनाक भेड़िया आया हुर्रात एक साथ मैं डर को पीछे चलेगा मुझे उतनी दम नहीं है बोला जो हकीकत है वो बोला मुझे दम नहीं था मैं छप गया बाद में जब तुम्हें बात करे उन्हें बात करता क्या तुम ना बोले हमें वो ही जिनकी नस्ल नहीं जिनके पसीने के खतरे से अनबिया बने वो अनबिया सुलेमान जैसे नबिया उनको चरिंद को परिंद को दरिंद को चुमटी को बात करने की औकात रहते तुझे भरोसा है खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा का खून के पर भरोसा नहीं क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा के पसीने के 5 नारा 1.25 लाख नारा नारा नबी के पसीने के खतरे से बने तो उन चुमटियां को बात करे तो भरोसा किसे है नहीं सुलेमान का वाक़या चुमटी को बात कर रही सजे परिंदियां को बात कर रही हर चीज को बात कर रही सो तुम ना भरोसा तुम्हें खून मोहम्मद नहीं बात कर सकता खून मोहम्मद नहीं बात कर सकता ये ऐसा है कि एक वाक़या है दुम्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहाँ से आया सो सरकार मेराज को जाती गए मेराज को गए तो सरकार वापस आती गए वापस आए बाद बोलती गए वाक़या सुना को तो साहबा बैठे कि नहीं ज़रा सुनती गए सुने बाद बोलती गए एक शेर था अल्लाह ताला का जब मैं पर्दे के अंदर घुसने गया जहाँ पर एंट्री जिब्राइल की भी नहीं थी ला मकाम को गया करके बोले तो एक शेर आया जिब्राइल को पूछा ये शेर कौन बोले ये अल्लाह का शेर क्या शेर अल्लाह का शेर जिब्राइल बात करोगे तो नहीं मैं यहाँ खड़े रहो तो या रसूलल्लाह तुम्हें इसके बाद में अगर गया तो वो शेर मुझे खा जाता है क्या करना करके बोले तो तुम्हारी खिदमत में आको है कुछ इसे तोहफा देना क्या दे डालो क्या देना अजर देना क्या देना टिकट देना किसे मिलना अल्लाह को मिलना अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से भी सिक्के गिक्के ले कहीं नहीं अब उन्होंने कैसा सच को सबर को जैसा निकल को आई वैसा आई अब देखेगा तो कुछ भी नहीं एक हाथ में अंगूठी थी क्या थी किसे मिलना फ्री में नहीं मिले नबी फ्री में अल्लाह को नहीं मिला तो तुम्हें फुगुट में मिलती तुम्हें हाँ फुगुट जिंदगी में कोई भी नहीं क्या करती अंगूठी लेती अंगूठी निकाले कि नहीं उठा को डालते साहब तो वो शेर मुंह में ले लेता वाक़या सुना रही रसूल तो मौला अली मुश्किल कुशा वो टेम्पो साहबा सामने बैठे रहते हैं पीछे से हाथ आता है सरकार या रसूलल्लाह ये अंगूठी नहीं क्या करती रात को गई सो फजर को पूरी स्टोरी बोल रही सो पीछे से हाथ डाले कि नहीं अली बोलती या रसूलल्लाह यश ना आगे तो बोलती बेशक यश मेरी अंगूठी का बेशक ये मेरी अंगूठी तो सामने चौक जाती या रसूलल्लाह अब बीच बोले वहाँ शेर को देखो आया कर को क्या बोले शेर को देखा है बोलती कहते खुदा की कसम यश अल्लाह का शेर कर यश अल्लाह यश अल्लाह का शेर कर दिया अब जरा जने वो टेम्पो भी डाउट आज भी डाउट सबाम भी डाउट क्या डाउट सुन लिए अब रसूल कर को बोल को इख्तिलाफ नहीं करना कर को बोल को हाउ की कर को बोल को उसके बाद फिर सवाल करे अभी ज्यादा शान हो जाते ना मौला की निकल को बाहर निकले जरा वक्त के बाद मौला अली भी गए सरकार भी गए सरकार उनके घर को गए मौला अली उनके घर को जा रही फॉलो करे नहीं पकड़ लिया अली को क्या ली तुम्हें बैठे कि नहीं रसूल शेर की बात करे तो तुम्हें हाथ की बात करें सही में तुम्हें थे क्या कल रात को शाम में मेरे साथ थे ना ईशान में मेरे साथ थे रसूल गए मानती तुम्हें अली कैसा चल जाती अली कैसा भी चल जाते रसूल जाती मान लेती अली कैसा जाती मान लेती अली बोलती है तो कब से है मुसलमान बोले जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान बनाना है मैं तब से मुसलमान में सब कुछ जानता हूँ क्या क्या जानता तू गया सब कुछ जानता हूँ इस्लाम के बारे में दीन के बारे में पुराने नबियां के बारे में भी जानता हूँ कौन से नबी के बारे में मैं इब्राहिम इस्माइल इसहाक के बारे में सब जानता हूँ बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जानता है क्या जानता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुम्बा आया ना वो आया कहाँ से आया कुछ नहीं जन्नत से दुम्बा आया सो तू मान लेता है
जन्नत से एक जानवर आया सो तू मानता है, खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा का वसी गया सो मानता नहीं। क्या आज औकात ऐसी है सो। आज मुसलमान में मुरीदा में क्या है औकात, दुम्बा आया तो पहले ढूंढ ढूंढ को मेरे बेटा था क्या करती, गोश्त खाने के वास्ते दुम्बे ढूंढते रहती, बकरे ढूंढते रहती। वो खुदा की कसम अली इमाम जाको थे ना, वो नहीं ढूंढे ना, वो नहीं ढूंढे ना। देखो रसूल गए करके बोले तो एक रिवायत में सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 60 पर 3 साल में इजराइल आती कहते, आको बोलती कहते या रसूलुल्लाह तुम्हारा वक्त खत्म होगा, अल्लाह बुला रहा वापस आओगे। सरकार बोलती कहते नहीं कहती, कैसा वक्त का, मेरी तकदीर में 90 साल, कहते साल 90 साल लिखी सो, तू 60 पर 3 में आया ना कहती। अब इनको भी मालूम नहीं, अल्लाह का हुक्म है, जाकर अल्लाह को बोलती कहता ऐसा बोल रही ना, बोलती कहते कह दो मोहम्मद मुस्तफ़ा को 27 बरस, कहते बरस 27 ईयर, 27 साल, खाली मेराज नहीं, एक दिन की मेराज नहीं, 27 साल अल्लाह ताला सरकार दो आलम को ऊपर रख लिया था। कहाँ रख लिया था? 27 साल अल्लाह ताला ऊपर रखा था। कितने साल? दुनिया को ऐसा खड़ा डाला था कहते, ना सेकंड चला ना सेकंड चला, आदमी चलते रहा था ऐसा खड़ा था कहते, ऐसा जानवर उड़ते रहा तो ऐसा खड़ा था, पानी बहते रहा तो ऐसा खड़ा करते, जो कुछ रहता ऐसा स्टैंड स्टिल। वो बोलते नहीं स्पेस कर दो, पूरी कायनात आज वो तुम्हें पिक्चरा में देखते रहेगा। आज वो सरकार वो जमाने में सब चीज कर डाल, 27 वर्ष को दुनिया को ऐसा थाम लिया करते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 27 वर्ष की बात हुई तो मौला को कुछ नहीं करते, 27 वर्ष करेस क्या, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फिर लेते क्या नहीं, बोले 27 वर्ष इसके वास्ते करे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 9 इमाम आने वाले। कहते इमाम, पहले अली, दूसरे हसन, तीसरे हुसैन, अब ये 3 निकाले तो कितने बचे? 12 में से कितने बचे? 9 इमाम थे। अल्लाह ताला चाहता था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्स नफीस ये 9 के 9 इमामों को अकेले में और साथ में हर इमाम को भी, हर इमाम के साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3 साल गुजारेगा। कितने साल? 3-3 साल गुजार को नफ्स नफीस रसूलुल्लाह डायरेक्ट उनको इल्म दिया करे। उसके अंदर मूसा काजिम भी अलग, उसके अंदर मूसा काजिम भी अलग। तुम्हें वो इमाम, तुम्हें मेरा समझते नहीं, अल्लाह को देखने के वास्ते, मेरा अल्लाह को देखने के वास्ते नहीं, हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 वर्ष खुदा की कसम इमाम के साथ निस्बत के रखने वास्ते चले गए थे। क्या रखने के वास्ते? इमाम से निस्बत रखने वास्ते चले गए। सुन्नत रसूल नहीं, आको 27 मिनट बैठ हो रहेगा तो नहीं जाता सकते। कई को ये क्या भी करे नहीं ना, उन्हों करे नहीं ना, इन्हीं करे नहीं ना, ये कई को करना क्या करना। जिंदगी रसूल की मेराज हुई सोच इमाम के वास्ते, इमाम की निस्बत के वास्ते, इमाम के साथ बैठते, हर इमाम के साथ 3-3 साल या पूरे के साथ 27 वर्ष उनके साथ जिंदगी गुजारे। ये 9 इमाम के साथ जिंदगी। ये जो हाजिर के 3 इमाम थे वो उन्होंने यहाँ दुनिया में उनको निस्बत मिली थी रसूलुल्लाह की, वो इमामा को 9 इमामा को उनकी निस्बत के वास्ते रसूलुल्लाह 27 वर्ष उनको वहाँ गुजारा। बरकत ये इमाम सरकार मूसा काजिम को पूछा, वो मुरीद वापस आया, फिर वो रस्ते पर तुम्हें वो समझे पूछा मुरीद क्या इन्हों बात करे सो, बोले तो बोलती इमाम मूसा काजिम ये जो भेड़िया है, भेड़िए की औरत डिलीवरी करिए। क्या करिए? डिलीवरी करिए। तकरीबन 7-8 दिन से तड़प रही। क्या आ रही है? भेड़िए नहीं, भेड़िए की जोरू बोलती है, उसकी औरत बोलती है क्या की जानवर की 7-8 दिन से तड़प रही है, उसे डिलीवरी नहीं हो रही। वो मालूम हुआ कि मैं इमाम जंगल से ये गुजर रहा हूँ, भेड़िए को, जंगली जानवर को, दरिंदे को समझ में आ गया यहाँ रसूल का खून आ रहा है, खुशबू रसूल आ रही है को समझ में आ गया। वो जंगली भेड़िया सुन लो जे, भेड़िया बेअक्ल जानवर, भेड़िए खुदा की कसम इमाम की खुशबू सुन ले को क्या करे, आया इमाम के पास इस्तिग़ासा कर रहा है, इमाम जरी दुआ कर डालो, तुम्हारी अल्लाह सुनने वाला। 8 दिन से मेरी भाई को हाँ वो गार में पड़ी है, तड़प रही है, खून ये सब बहुत तड़प रही है, मौत की इसके पर है, डिलीवरी नहीं हो रही है। इमाम क्या भी करोगे तो जैसा बोल रहा है, इमाम को अल्लाह ताला से इल्हाम हुआ, जा तेरी डिलीवरी होगी, जा तेरी जोरू की, जा तेरी औरत की डिलीवरी होगी कर दो। अब शादी नहीं होती है औरत के वास्ते जानवरा में, फिर भी वो बोल रू सो जा होगी कर दो। जैसा इमाम बोले जा अल्लाह ताला मेरे हाथों से उठाने से पहले तेरा काम होगा तो उन्हें पलट को क्या करता कहते बोलता कहते इमाम तुम्हारा शुक्र है, खुदा की कसम मैं वादा करता हूं कि अगर कोई कायनात के अंदर से तुम्हारा चाहने वाला गुजरा, कहां गुजरा? जंगला में से गुजरा,
हम भेड़ियों की जमात कभी उसे काट को खाती नहीं, हम ना काट को खाती नहीं। इमाम ये मेरा वादा, सुनो अल्लाहुम्मा आमीन। फिर जरा दूर गया, फिर बोलिया, फिर जरा भेड़िया, पूरे भेड़िया वादे करे, फिर शेरा, फिर बागा, जितने भी दरिंदर जानवर हैं पूरे वादे करेगा। इमाम तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर करम है, तुम्हारा करम है, हमें तुम्हें तुम्हारे ऊपर हमारी नजरों करम डाले। हमें वादा करती कि तुम ना और तुम्हारे चाहने वाले हो, तुम ना और तुम्हारे चाहने वाले वो दरिंदर जानवर काटता भी नहीं, खाता भी नहीं। याद रख लो, इमाम की मोहब्बत में रहा तो, मोहब्बत में रहा तो खुदा की कसम भेड़िया जंगली जानवर उसे काटता नहीं करता, क्या नहीं करता। तुम्हें यहाँ को तुम ना सांपा काटती, ना बिच्छुआ काटती, ना शेरा काटती, ना ये काटती। इमाम की मोहब्बत आज भी याद रख लो, इमाम कौन से भी एक इमाम या 12 इमाम की मोहब्बत रखने वाला जंगला में से गुजरा तो कभी भी याद रख लो, उसे कभी भी उसे देख ले हट जाती है, देख ले तो हट जाती। इमाम की होती ताकत। इमाम सिर्फ खाली इंसान के ऊपर भी नहीं, खुदा की कसम सारी कायनात के ऊपर राज करने वाला, पूरी कायनात के ऊपर राज करने वाला। पूरी जिंदगी याद रख लो, अगर तुम्हें जो जी रही, ये तुम्हारी जो हमना, ये बारिश, ये हवा, ये खाना, ये पीना, ये सब कुछ जो चल रहा है नहीं, ये किसका सदका कर दो तुम्हें, किसे ये इसमें है नहीं, किसमें आयतुल कुर्सी में नहीं, यासीन में कुल्लु शैइन अहसानकुम फी इमामुन मुबीन, कुल्लु शय, हर शय, कुल शैइन, शय करके बोले तो अल्लाह ताला जितने भी शय बनाया वो सारी शय इमाम मुबीन के इहाते में है। किसके इहाते में? इमाम मुबीन के इहाते में। मतलब क्या है, पूरा इहाता करके बोले तो जैसा इमाम हसन हुसैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खंडियां के ऊपर बैठ को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब वो ईद का मौका बोलूँ सो, या रसूलुल्लाह सबके पास ऊँटा ही घोड़े ही, हमारे पास नहीं कर, तो रसूलुल्लाह सब बैठ जा तो क्या कर डाले, इमाम हसन क्या कर रहे, इमाम हसन को एक जुल्फ दे डाले, हुसैन को एक जुल्फ दे डाले। क्या करते इमाम हसन ऐसा घसीटे तो ऐसा जाते, हुसैन ऐसा घसीटे तो ऐसा जाते। जाना था तो कान करके बोले तो नमाज पढ़ाने, क्या पढ़ाने, ईद की नमाज पढ़ाने। कौन जफरी से, कौन बड़े बड़े सहाबा, नमाज अल्लाह की, किसकी नमाज, अल्लाह की नमाज, जफरी सो सहाबा। हमारे यहाँ खेल खिला रही सो कौन, हसनो हुसैन, क्या कर रही सो, यहाँ फिरे तो हाँ, यहाँ फिरे तो हाँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में खेलते खेलते बाद में थके बाद जाओ कर लो इबादत कर को, सरकार को चल कर को बोल को बुला ले जाती, कहाँ ईदगाह को बुला ले जाती। ईदगाह में भी जाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा ईद की नमाज में भी इमाम हसन हुसैन की शान, इमाम हसन हुसैन की शान करे। शान करने के बाद निकल को गए करके बोले तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे गए थे उनकी, या रसूलुल्लाह तुम्हें जिस तरफ चाहे अल्लाह उस तरफ मिलता सो, जो उस तरफ जाती है तुम्हें अल्लाह वो तरफ होता सो, मगर आज हमें एक अजीब चीज़ देखे, इमाम हसन जहाँ घसीटती नबी वहाँ जा, नबी कहाँ है, पूरे नबियाँ उसके पीछे, पूरे नबियाँ के वलियाँ उसके पीछे। हमारा नबी कहाँ है, अब इब्राहिम कहाँ है तो पूरी उम्मत उनके पीछे, इस्माइल कहाँ है उनकी उम्मत पीछे, पूरे नबियाँ कहाँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा उनके पीछे, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पीछे पूरे नबियाँ। मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ करके बोले तो इमाम हसन यहाँ ढकले तो यहाँ ढकले तो यहाँ ढकले तो यहाँ ढकले तो है। ये माजरा क्या करके बोले तो बोलती कहते हैं, खुदा की कसम मैं खातिमुल अनबिया, मैं सैयदुल मुरसलीन, अल्लाह ताला मेरे सदक़े में सारी कायनात बनाया। मगर याद रख लो, मुझे सारे का सारा सरापा कंट्रोल करने वाले हैं मेरे इमाम गति, ये मेरे इमाम गति, जो हसन की जो पुश्त में आने वाले, हुसैन की जो पुश्त में आने वाले हैं, इन्हों खुदा की कसम जिस तरफ चाहे मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा को मोड़ लेती, और मैं जिस तरफ मुड़तूँ, याद रख लो ये मैं मुड़िया नहीं, ये मोड़ी समझे इमामा। कौन मोड़ी सो, तुम्हें क्या देख रही मालूम, मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत कर को, तुम्हें सीधा देख रही क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा को उसी तरफ गए कर को, मगर असल में मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर चढ़ को मोड़ने वाले कौन ही देखे नहीं, हसन और हुसैन, ये दिखाने वाला, ये इमाम की शान। इमाम मूसा काज़िम की बहुत से शान आई, बहुत से ऐसे करामात आई। इमाम मूसा काज़िम एक बोला तो क्या सुस्त हो गया क्या, खाली बैठ को सुस्त हो जाती ना तुम्हें, भूखड़ा बैठ को सुस्ती, वहाँ से खाना, वहाँ से पानी, वहाँ से ये होना। जरा सुन लो, इमाम एक बार आए, हाँ इमाम के पास एक मुरीद आया, मुरीदा को बोला इमाम
म्हणजे सलाम हो हुसैन पर सलाम हो, सलाम हो हुसैन पर सलाम हो। इमाम के पास एक मुरीद आया, उनका चाहने वाला आके बोला, इमाम मैं बहुत दूर से ही हूँ, मैं रेह करको एक शहर है रेह, वो रेह का शहर से ही हूँ, बस तुमने मिलना था और दुआ करना था, क्या है किस्सा बोल कर बोले। उन्हें बोला, मुरीद बोला, देखो वहाँ का जो गवर्नर है मेरे ऊपर बहुत टैक्स लगा था। क्या लगा था लिया? बहुत टैक्स लगा था लिया। अब मैं ले लेगा आपको, मैं टैक्स दिया करके बोले तो मेरी दौलत ही नहीं रहती है। उन्हें क्या मेरे को क्या समझ को क्या लगाया कि बहुत कर डाला, अगर मैं कमारूस होता दे ले रहे टैक्स ले 10% 20% टैक्स ले करके बोले तो मान रहा नहीं। उन्हें मुझे फुल टैक्स लगा था लिया। तुम्हारा उन्हें मानने वाला, तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हें अगर ज़रा कहते भी दुआ कर डाले तो बोल डाले तो इन्हें मान लेता। क्या इमाम क्या करे, अच्छा क्या कर बोला उनको, एक लेटर लिखे। क्या लिखे हैं? ऐ शख्स, मैं इमाम मूसा काजिम, मैं इमाम मूसा काजिम, देख तू मुझे चाहता है, तू मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानता है, तो हमना इमामा को मानता है, माना तो अगर तू सबसे बड़ा काम अगर चाहता है तो तेरी ज़िंदगी में करने के वास्ते तो इमाम की मदद कर। किसकी मदद कर? इमाम की मदद कर, इमाम की नुसरत कर। अगर इमाम की मदद नुसरत नहीं कर सका तो इमाम के चाहने वाले की मदद कर, उसकी नुसरत कर। अगर तू ऐसा करे तो खुदा की कसम हम इमाम तुझे गवाही देती कि तुझे जन्नत तेरे पर वाजिब करती, जन्नत तुझे वाजिब करती। जब तक तू इमाम की नुसरत नहीं करता, उनकी मदद नहीं करता, उसकी मारिफत नहीं मिलती। और अगर मारिफत नहीं मिली, पहचान नहीं मिली तो तू जुल्म की मौत मरता। अगर तू जन्नत की मौत मरना, तो बेहिश्त की मौत मरना, तो हम ना तो मदद कर। अगर नहीं हो सक रहा तो मदद करने वाले, हमारे चाहने वाले की मदद कर। अब उसके अंदर क्या भी डिटेल नहीं लिखता, कहता लिखो उसे दे डालती। लिखो देने के बाद उन्हें जाता रे को जाने के वास्ते जाको बादशाह के महल के बाहर करके बोलता है, मैं इमाम का खासिदा को इमाम का लेटर ले लगा दे रहा हूँ तुमने गवर्नर को। अब जैसा सुनता उन्हें सीधा क्या करता है, महल के बाहर ही निकल जाता। इमाम को बड़ा चाहने वाला आया कि नहीं, उसके पाँव पड़ को, उसके हाथों पकड़ को, उनके अखियाँ को चूम को बुला लेगा तो क्या करता, अपने तख्त के ऊपर बिठाता, तख्त के ऊपर बिठाता। न बोलता है मैं कौन मालूम क्या करता, कौन है कि तू, मंजे वो नहीं, मगर तू इमाम का खासिद, मैं जिसे चाहता हूँ, जो हमारे वक्त में इमाम है, नबी ज़ादे ही, उनका मैं चाहने वाला, मैं तेरी इज्जत में अजमत नहीं करे अगर को बोले तो बहुत मुश्किल। बोलती देख मैं वो शख्स जिसके ऊपर तू टैक्स ज़्यादा डाला गया, टैक्स बहुत ज़्यादा डाला गया, मैं वो शख्स का, तू वो अलग चीज़, मगर तू इमाम करने से आपको खासिद बना। जब तक तू खासिद रहता तू मेरा इमाम रहता, मेरा इमाम रहता। ला लेटर लिया कर, ले को क्या करता है, 2 रकत नमाज पढ़ता। नमाज पढ़ने के बाद, शुक्राने नमाज पढ़ने के बाद इमाम के लेटर को चूमता, चूम को खोलता, खोल को देखा तो पढ़ता, पढ़ को देखा तो इमाम लिख को रखती, सलाम अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम की पहचान रखो, इमाम की पहचान रखो, तुम्हें इंतकाल हो गए तो तुम्हें जन्नत, तुम्हें बख्शिश में इंतकाल हो गए, शिफात को इंतकाल हो गए, तुम्हें ईमान को इंतकाल हो गए। इमाम की पहचान नहीं है करके बोलो तो तुम्हें जुल्म के ऊपर, तुम्हें कुफर की मौत मरे सो। अगर तुम्हें इमाम की पहचान करना चाहती तो इमाम को मदद करो, इमाम की नुसरत करो। अगर इमाम को मिलना नहीं चाह सकते, नहीं मिल सकते, किसे बोल रही सो, वो ज़माने से भी ये ज़माने को याद करे, जैसा हमें इमाम को नहीं मिलते, मिल सकती नहीं मिलते, इमाम की नुसरत नहीं कर सकते, तो इमाम के चाहने वालों की नुसरत करो। जैसा सुनता है, समझा कि नहीं, उठा को ये करा कि नहीं, बात बोलता है साहब दुआ को रहती, देखो इमाम के पास जाको साल साल मैं गवर्नर बन गया, बादशाह बन गया, मगर जो इमाम ये बात लिखे मैं इमाम के पास फिल वक्त नहीं जा सकता। मैं सोचता हूँ कि इमाम तुमने बहुत चाहती, बोलती मैं भी उनका है गुलाम, तुमने चाहती क्या, मुझे बहुत चाहती। चाहने में इतना लेटर दिए सो, चाहने में इतना लेटर दिए सो, चाहत नहीं रहती तुमने लेटर दिए। एक काम करो, मेरी दौलत में आधी दौलत तुम्हारा टैक्स जो है मैं बनतू, पूरा टैक्स मेरे तरफ से मैं बनतू, और आधी दौलत जो है तुमना मुवाज क्या बोलती इसके तरफ से, जो हमना क्या होता है उसका जो ये रहती नहीं मुआवजा नहीं, उसका जो टैक्स बन को उसका जो ये देती, उसके वास्ते मैं तुमना आधी दौलत मैं तुमना दे तू। कई को दे रो, जो तुम्हें मेहनत कर को दूर गए, मशक्क़त करे, तुमना जो तकलीफ़ दिए,
जो तुमने मैं धंधा करने नहीं दिया, जो टैक्स तुमने डाला लिया, तुमने जो मैं डराया, जो मैं धमकाया, जो कुछ भी वो तुमने मैं करया, उसका मुआवजा क्या कर रहा हूँ मैं क्लियर कर रहा हूँ, तुमने खुश कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी आधी दौलत से खुश होती है? कहती है तेरी दौलत, बोलती है कि मेरी आधी दौलत 10,000 सुर्ख ऊंटा ही गया। कहते हैं 10,000 सुर्ख ऊंटा, सुर्ख ऊंट का तो और पैसा। बोलती है आधी दौलत तुझे देता हूँ, देखो हाँ मान लेते हो। बोले मैं टैक्सा ये कर रहा को नीचे उतरने गया। नीचे उतरने के बाद दरवाजे तक छोड़ता, दरवाजे तक छोड़े कि नहीं पूछता, कहता ये पर्सनल सवाल करता हूँ, तुम्हारा टैक्स भी पूरा मैं दे दिया और आधी दौलत तुमने दे दिया, तुम्हें ये बोलो कि तुम्हें मुझे मेरे से खुश हैं कि बेजार हैं, तुम्हारे से खुश हैं कि बेजार हैं? बोलता है बेशक मैं खुश हूँ, मेरा टैक्स के पैसे भी तू दे दिया और साथ में तुझे आधी दौलत भी दे लिया, क्या मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। मैं बोलती कहते हैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान कर को पाँव में पड़ जाता कि तू बादशाह ना बा वक्त का, तू गवर्नर ना तू वक्त का, तू कोई को पाँव में पड़ रहा। तो जो लेटर में लिखे थे नहीं इमाम, अगर इमाम की मैं नुसरत नहीं कर सका, मैं इमाम की मदद नहीं करता, इमाम के चाहने वाले की नुसरत मदद करे तो वो इमाम की मदद कर को, मैं खुदा की कसम तेरे वास्ते नहीं इमाम के वास्ते करने लगा, इसके वास्ते इमाम के वास्ते। फिर जरा साल के बाद वहाँ जाना पड़ा, किसके पास? इमाम के पास जाना पड़ा। इमाम के साथ हजारों आदमियाँ बैठी, इन्हें आको है सो, अब उन्हें पैसे वाला होगा, सब बड़ा होगा आदमी, वहाँ से देखता, कहाँ से इमाम को बोलेंगे अगर को देखता ऐसा ऐसा तुम्हारा लेटर लिख जाको मुझे इतना हुआ करो। इमाम खुद उनके बयान के अंदर बोलती कहता ऐ शख्स रे के गवर्नर को बोल डाल, मैं भी उसे बख्श डालिया, मेरा बाबा अली भी बख्श डालिया, मेरी माँ जहरा भी बख्श डाली, मेरा नाना, मेरा रसूल, मेरा नाना, मेरा जद भी उसे बख्श डालिया, उन्हें मेरे चाहने वाले की मदद करया, खुदा की कसम वो मेरी मदद है। आइंदा वाले जिंदगी में भी ये कर लो, अगर इमाम तक पहुंचते नहीं, इमाम के चाहने वाले की अगर खिदमत कर डाले तो वो इमाम की खिदमत, वो इमाम की मदद, इमाम की नुसरत। जाओ अगर को बोल को इमाम छोड़ा लो, हर चीज में भी दीन हो दुनिया हो, खुदा की कसम इमाम हमारे ऊपर लाजिम, हमारे ऊपर लाजिम, हमारे ऊपर जैसा कलमा लाजिम, जैसा नमाज लाजिम, जैसा रोज़ा लाजिम, जैसा हज लाजिम है नहीं, उसके ऊपर ये कैसा मालूम ये शर्त जैसा। अब कहते हैं फर्जा ही कहते हैं 5 फर्जा नहीं है, पहले शहादत, बाद में जल्दी जल्दी बोलो, दूसरा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। नहीं पढ़ रही हो सभी है नहीं। अब वजू फर्जा में आता है, गुस्ल फर्जा में आता है, बोलो। अब फर्ज में नहीं आता को बोला को, वजू भी फर्ज में नहीं है, फर्ज में है क्या? गिनती में है, 5 में है, वजू गुस्ल पाकिस ना, वजू भी गुस्ल पाकिस ना, ये फर्ज में आता है। अब नहीं आता को बोला को, मैं अल्लाह बोले मुझे नमाज मैं खड़ जाता हूँ, नमाज को बोल खड़गा तो होती है कि हो, मैं रजा तो रोजा नहीं है, फर्ज में नहीं है, मैं कहीं को करूँगा था, बोलो जी कि वो फर्ज में नहीं है ना, फर्ज में वजू का गुस्ल का जिक्र नहीं है ना, फर्ज में 5 चीज ना, तब होता है नहीं होता। देखो ऐसा मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत रसूल अगर तुम्हारे 5 फर्जा में भी नहीं है करके बोलो तो ये ईमान की शर्त है। क्या है सो? जब तक तुम ना दिखाने की जो ज़ाहिरी इबादत के वास्ते ज़ाहिरी वजू गुस्ल करना ज़रूरी है। ज़ाहिरी के तो अब दुनिया का पानी, दुनिया की मिट्टी से हमें तयम्मुम करे, वो सभी कर को पाक हो को, ज़ाहिरी हमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ज़िक्र के वास्ते, ये ज़ाहिरी आमाल के वास्ते ज़ाहिरी पाक होना ज़रूरी है। नहीं ऐसा अगर हमें अकीदे के अंदर, ईमान के अंदर, बातिन के अंदर, रूहानियत के अंदर अगर हमें पाक होना तो मोहम्मद व आले मोहम्मद मुस्तफ़ा की मवद्दत होना हमना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है कर को बोले तो सामने तुम्हें इंसान की शक्ल में है सो, मगर असल में पूरे शैतान है सो, असल में शैतान जो इमाम को नहीं माना, इमाम को चाहा नहीं, याद रख लो उसकी ज़िंदगी ख़त्म, उसकी औलाद, उसकी नस्ल, उसकी फसल पूरी की पूरी ख़त्म हो तीच नहीं। याद रख लो, कम से कम तुम ना जब से सिलसिला चला रही तब से तुम ना क्या 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 देने की कोशिश कर रही, कौन सी तरफ बुला रही? मैं मेरे बाप की तरफ बुलाया, मैं अम्मा की तरफ बुलाया, किसकी तरफ बुलाया? मैं हमारा काम इस क्या पंजतन पाक की तरफ बुला,
बेशक। पंजतने पाक में मोहम्मद मुस्तफ़ा भी है। हक साहब। कान खोल को सुन लो, पंजतने पाक में मोहम्मद मुस्तफा है नहीं है। बेशक बेशक 12 इमाम की तरफ बुलाया, हक साहब। बुलाया नहीं बुलाया, बेशक 14 मासूमीन की तरफ बुला रही, बेशक गौस आजम की तरफ बुला रही, बेशक सिलसिले की तरफ बुला रही। बेशक किसकी तरफ बुला रही? किसकी? पर्सनल तो नहीं जा रही ना, नहीं पर्सनल आको मुझे ये करो वो करो करो, नहीं फिर तो की नहीं आ रही से वरते साल से जिंदगी 50-50 साल 60 साल 70 साल की जिंदगियां होगी ना, जब तुम ना खाली डलिया की तरफ बुलाते तो दीवाने बन को कुत्ते के बन को आते, बेशक खाली तुम ना संदला में उर्सा में खाली हारा ले लेगा बोलो तो बड़े बड़े हारा ले लेगा, कुत्तिया की सरकार डालने मालूम। कुत्तिया को इमाम की महफिल मजलिस समझ में नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? महफिल मजलिस समझ में नहीं आ रही है। आज भी बाहर वाले को दूर की बात सब जने क्या समझते, लाइफ जाते रहता है, बाहर वाले को तुकरी को बोला को सब जने टेंशन में ही, तब भी उन बात मुंह खोल को बोल रही नहीं। मैं थूकता सबसे ज्यादा हमारे मुरीदान कई को, जब तुम्हें वो कश्ती में बैठी, कौन सी कश्ती में? अहले बैत की मोहब्बत नूह की कश्ती के माने। बेशक क्या काम है तुम्हारा? मल्लाह कौन चलाने, कश्ती का मल्लाह कौन रहता सो? ये इमामा कौन? इन्हों चलाने वाले। हमें बैठना सिंह के साथ, इनको डायरेक्शन हमें नहीं, लेफ्ट राइट डायरेक्शन नहीं रहना, अंगलियां नहीं करना। अब तुम्हें बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, उठाए कि नहीं, क्या कि डंडा मिला कि कुंडा मिला कि कश्ती ऐसा फोड़ने जा रहे, क्या बोल रहे? फोड़ रही जी। अब बाजू अकरम बैठी नहीं, वहां सना फोड़ रहा है, अब क्या करती तुम्हें, क्या जी करती? अब हजारों आदमियां बैठी भाई, एक जना बेवकूफ को फोड़ रहा है, दाल को घुसड़ रहा, क्या रहा करूंगा तो मेरी सीट पर बैठे हो, फोड़ लेता हूँ कि तोड़ लेता हूँ, लड़ने होता है। बोलो जी, हमारी मर्जी से चलाते रहे खान खाया, तुम्हें कोई को बोलने वाले नहीं होता। हमें कौन कौन आता तो आती, हमें करना तो करती, नहीं तो करते नहीं। फोड़ ले बैठे तो क्या करना, देखने होता कि हम ना नहीं साहब कि वो देखे तो बैठे क्या होता है, हमें भी हमें देख ले तो बैठे तो पूरी की पूरी कश्ती डूब जाते। क्या करती? इज्जत से बोलती, उठा रहे हैं कहीं कर फोड़ रहा करती, बेशक मेरे बाप की कहता, और तेरे बाप की माल मेरे बाप की, फोड़ रहा कहीं को, बेशक फोड़ रहा कहीं को नहीं, मैं देखना मैं फोड़ को। बोलती है हजाम तू फोड़ा तो मेरा बेटा, तू भी नहीं, वो दोगन पड़ा कर को बोलो तो पूरे पानी अंदर भी आता है, पूरी कश्ती भी डूबती है, तो कश्ती के साथ हमें भी डूबती, पूरी कश्ती डुबा को चल जाता करते। उसके हाथ से थूक थूक को उसे मार मार को बोलती, नहीं बोलते नहीं बोलते। ऐसा जब नूह की कश्ती में बैठ रही तो तुम्हें अंगलियां कर ले को बैठो न को, क्या करो लोग बैठो न को, तुम्हें ड्रिल्ला डाल लो होलना डाल लो बैठ लो न को, तुमने क्या था बोलती। एक जना भी अगर उसके अंदर गलती में निकल गया तो पूरी की पूरी जमात डूब को मर जाती। किसकी जमात? पूरा सिलसिला खराब हो जाता। बेहतर काम क्या है, जब तुमने ये नहीं होता बैठने का कश्ती में, नहीं गांड मुझको उतर जाओ, उतर जाओ। कहाँ उतरते हो बोला? कश्ती भी कहाँ गई? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, उसे किनारा नहीं था करता, क्या नहीं था? किनारा नहीं था, क्या नहीं था? बेशक तुम्हें सोचते रहेंगे हमें उतर जाएंगे, कब तभी कर दो, उतर जाएंगे तो खान खा से भाग जाएंगे। मेरे बेटे तू उतरिया तो डूबगा, तू मरता सोच, तू वटे को उतर को मरा तो तू अकेला मरता, तो हमारे साथ रहा अगर को बोलो तो सबको डुबा को मरना। ऐसा अगर करने का रहा तो पूरा सीधे सीधे करना, चाहे कौन सा मैसूर का खान खारंदे, हुंसूर का खान खारंदे, मद्दूर का रंदे, बेंगलुरु का रंदे, ये सब मेरे बड़ता को बोल रहा हूँ। खाली तुम्हें ये सुनो को खुश हो को, खाली हुंसूर वाले बोल रही हमने उनको स्तुति, कौन कौन गलती कर रही मेरे बड़ता, सबके वास्ते अच्छे। तुम्हें खान खा में बैठ को खोदो नो को, खान खाए क्या करो नो को, दबाल घट जो काम करने का है वो काम कर लो को, गपचुप इमाम कैसा बुला ले जाती, इमाम के पीछे चलते रहो। इमाम के पीछे गए तो हमारा हिसाब किताब नहीं देना, क्या नहीं देना? नहीं। अब खुदा ना खास्ता, अब मैं कौन से भी पीएम मोदी के साथ में अब मैं ड्राइवर समझ लो, नहीं ड्राइवर किसका ड्राइवर है? वो से कि पीएम का ड्राइवर। अब मुझे वेलकम के वास्ते रेड कारपेट डाल दो, बाकी के आदमी सभी साइडा से जा रही सो, रेड कारपेट वेलकम किसे है उसका लिए? नहीं, उसके कार में से कौन निकलती, उसे कहाँ से निकलते? मोदी निकला, उसके पीछे पीए निकला, उसके और एक पीए निकला, मैं भी ड्राइवर निकल को उसके पीछे चला, कौन थी मुझे रोकती की कर को बोले तो उसके साथ में हूँ सो, क्या हूँ सो, उसके साथ में निकल जाऊँ सो।
अब वो एक बार चलेगा, दूसरी बार क्या करे, उन्हें दूसरे ड्राइवर के साथ आया, मोदी जा रहा, मैं यहाँ को वो फिर वो कारपेट पे चले तो क्या बोलती है कहीं को, मैं जोड़ में नहीं, हाँ वो टेम्पो जोड़ में नहीं ऐसा मार को भगाती, उसके वास्ते कहीं को मारा खा को जाती, बोलो मारा गए को कहीं को जिंदगी खराब कर लेते, साथ में रहे तो तब भी उसका मजा, किसके साथ, सिलसिले के मुर्शिद के साथ में रहे तो, इमाम के साथ में रहे तो क्या है, तुम ना नहीं पूछते इमाम कहाँ है, उसे देख ले कि नहीं, सबको एंट्री, जैसा उसे देख ले को उसके पीछे कितने जने एंट्री हो जाती है, उसे पूछते नहीं। ऐसा अगर हमें अकेले जाते रहे तो डुबकोच मरना सो, वो भी कौन सा डुबको मरना सो, ऐसा डुबको मरती है, ऐसा डुबको मरती है, उसकी तह भी नहीं, उसकी जाने की भी नहीं। उसके वास्ते जरा कान खोल को जरा सुनो समझो, खाली यहाँ से बोल को यहाँ से निकालने के वास्ते मजलिसा में महफिला नहीं करनी सो, क्या नहीं करनी सो, यहाँ से खोल को यहाँ से करने के वास्ते यहाँ उतारे तो मजलिसा होते से, यहाँ दिल में उतार को आइंदा हमें उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाना, अपना सभी अकीदा बढ़ाना सो, क्या बढ़ना सो, अकीदा बढ़ना सो। तुम्हारे बच्चे कहते भी छोटे बच्चे, अब बच्चे रहती, अब उन्हें कितने साल तक पेशाब को जाने की फिक्र नहीं रहती सो, कहाँ कब मुत लेता ना भाई, कब कितने साल तक, 2 साल, चलो जरा कमजोर रहा तो 3 साल, 5 साल का, 7 साल का, 9 साल का, क्या करते उन्हें मुत लिया तो पैंट में, हाँ अब कर ले रही क्या सब लोग, क्या कर ले रही सब, क्या कर ले रही सब, याद रख लो सीधी सीधी बात इच्छा ऐसी है, अगर तुम्हें नहीं सीख रही, ये उम्र रहती है, वो उम्र के ऊपर तुम्हें जाकर ये सब चीजें करे पर बोला तो शर्म की बात, किसे शर्म की बात, क्या रहे तुम्हारा अम्मा बाबा सिखाई नहीं कर रहे, तू ये इतना बड़ा गद्दा है ना रहे, नहीं इतना ना बोलते सो, बेटा ऐसा कर लिया तो 5 साल का 7 साल का बच्चा मुद लिया तो क्या बोलती, क्या अम्मा बाबा को फिक्र नहीं रहा, उसे सिखाने नहीं कर बोलती नहीं, तुम्हें करते हो सो काम सिलसिला बदनाम होता सो, क्या होता सो सिलसिला बदनाम, नाम को खान खाया खोल ले, नाम को क्या कर डाले, ये इरादा भी नहीं है, ये क्या है उसके अंदर से एक क्या है, एक जज्बा भी नहीं है, चलो रे हमें चलेंगे, हम ना एक नहीं तो 21 नहीं तो क्या तभी कर को हमें जज्बा दिखेंगे, वो बोलती नहीं, वो जो भी वो कुंभकर्ण सोता ना वैसा सो रही ना, उन्हें भी 6 महीने सोता करते हैं, 6 महीने के बाद में खाता तभी करते, लड़ता तभी करते, उन्हें क्या की कर को आखिरी में उसका भाई का साथ दिया करता लड़ने के वास्ते, बात मर गया उनके वास्ते, वैसी नींद सो रही 12 साल से स्कीमा जगा रही, मेरा बेटा ना जाग रही नहीं ना, मैंने बोलो क्या कौन दूध पिला रहा तुम, कौन सा दूध ऐसा पीगी जो जाग रही नहीं ना, नहीं दूसरे कौन भी इंसान नहीं, नो सब इंसान नहीं, नहीं भाई तुम्हें सभी इंसान है नहीं, क्या माँ पेट से तुम्हें सीख लगा गया, नहीं ये सब चीजें पहले देख लेते हैं, नहीं अब तुम्हें सभी आए ना, सभी रूट आपको आए नहीं आए, दो परसों चले, कहाँ चले, पटन को चले, कई को चले, मेरे वास्ते चले, तुम्हें चले तो कई को चल रही करो, लोग पूछे ना क्या बोले तुम्हें, किसके वास्ते पूछे, चलो तुम्हें बोलना था नहीं हमारे बशीर भाई के वास्ते चलेगा, नहीं बोल सकती ये, बोले तो भी कौन बशीर भाई करते, सीधी बात, कौन नजीर भाई करती, कौन शरीफ भाई करती, कौन बाबा करती, कौन गुलजार बाबा, कौन ये बाबा, हुसैन ऐसी चीज, ऐसी ऐसा नाम, खुदा की कसम तुम ना हम कौन को बोलो गैर कौन को बोलो, खुदा की कसम उन्हें मानता नारे हाय गरीब हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, ये सब चीजें कई को करते सो, तुम्हें खुद तुम ना मालूम होने के वास्ते, तुम्हें हजारों साल जी को भी कट्टे बने तो भी तुम्हारे बाप की, तुम्हारे पीर की पहचान नहीं रहती, बाजू गली में नहीं रहती, 10 किलोमीटर दूर नहीं रहती, 20 किलोमीटर दूर नहीं रहती, जय हमें उसे मानती, उसके वास्ते हमें मेहनत कर रही, खुदा की कसम जमीना के 7 जमीना के अंदर जाओ, 7 आसमानों के ऊपर जाओ, हुसैन को तो इनको भी मालूम, हुसैन को तो उनको भी मालूम, जानवर को मालूम, हिंदू को मालूम, काफिर को मालूम, क्रिश्चियन को मालूम, ईसाई को भी मालूम, इज्जत देखो जी तुम ना, तुम्हें जिसे फॉलो करती उससे इज्जत नहीं है सो, खुदा की कसम उन्हें बुला को तूने उसके बाद से चला लेता नहीं, खाना भी दिला लेता है, पानी भी पिला लेता है, प्यासे उन्होंने प्यासे मरेगा था। इमाम हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन कभी रोते कहते हैं, हाय मेरा बाबा प्यासा, हाय मेरा बाबा प्यासा मरे, हाय मेरा बाबा बिना कफन के मरेगा। आज भी 1400 साल के वास्ते उनके नाम से चलो, तुम उनके नाम से कुछ भी करो, खुदा की कसम तुम्हें भूखे प्यासे से नहीं रहते, उन्होंने भूखे प्यासे हो कोई शहीद हो गए, उन्होंने
मगर तुम ना कभी भूखे प्यासे नहीं रहते, तुम ना फोर्स करते तो कि ले लगा को पिलाता। बेशक ये समझ में, ये तुम्हारे अकीदे बढ़ाने के वास्ते चला रही है, क्या करने के वास्ते है? बेशक तुम्हें देखो, तुम्हारा इंप्रूवमेंट देखो, तुम्हें जिंदगी में तुम्हें कितना भी चलते रहेगा, तुम ना इज्जत नहीं रहेगी। मगर हुसैन को चलने के वास्ते उसका ग्रेडिज कैसा रहा, उसकी इज्जत कैसी थी, उसका एहतराम कैसा था, बेशक उसका जज्बा कैसा था। और क्या बोलता हूँ, दिल फिर चलना, बेशक फिर करना, फिर करना, क्या होता है बढ़ता गया मोहब्बत में। मगर क्या है सभी चीज़ें क्या कहते वो कितने कमा लेती बोलो भाई, कितने कमाती बोलो, वो चीज़ें फिर मिलती क्या, एक साल नेक्स्ट ईयर गारंटी रहती क्या? नहीं अब बीच कहाँ की पत्थर यहाँ उठलियाँ यहाँ धंधा वो बीमारी ये बीमारी बोलते बोलते यार है सोच क्या है जिंदगी में कि माँ उठे तो बीमारी बैठे तो बीमारी। चलो जी बीमारी कैसी देखेंगे, कैसा नहीं आएगा, कैसा आती है देखेंगे। चलो जी हुसैन के हाथ बताओ जी कितने जने चले ना को बीमार पड़ा के पूछो जी। नहीं सर अब भी उनके पाँव में हाथा में दर्द थे, कहाँ की ये हो गए थे बीमार, शिफा हो गए उनको सभी। शिफा को बोलते नहीं सो, कितने को शिफा हो गए, कितने के न्याजा बरा गए, कितने की चीज़ा हो गए, पूछो जाको अलग ही जाको करो तुम्हें कितने की चीज़ा उनके ये होगा, कितने की काम अटक को थे, कितने की बीमार थे, क्या क्या किस थे, वो चले सो कितना की अच्छा होगा। चलो और अगर को बोले तो तुम्हें दुआ कर रही नहीं करता, हमारी दुआ नहीं खाली जबान की नहीं अमल की दुआ है। ये क्या ये महफिल को सी है दुआ चाहिए, वो अलग क्या की दुआ नहीं कर रही हमारे इनके वास्ते बच्चा के वास्ते ये नहीं हो नहीं भाई, ये दुआ क्या है सो ये सबसे बड़ी दुआ, हुसैन का नाम लेना दुआ, इमाम का नाम लेना दुआ, इसके सिवा कोई दुआ नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ऐसी दुआओं में आने की तौफीक अता फरमाए और इमाम हुसैन का करम हमारे ऊपर हर जगह ज़मीन और आसमान में रहने दे। अल्लाह ताला जो आने वाली सफ़र कब है सो सफ़र के साथ है, अब 20 सफ़र है, कब है चहलम है, क्या है अरे भाई क्या मालूम चहलम, अम्मा बाबा का चहलम करे तो अम्मा वो होने जाने का, इमाम का चहलम करो, किसका चहलम, इमाम का चहलम कहीं को करते इसका को बोले तो 40 दिन तक बिना सर के, बिना कफन के, बिना कोई उनके ऊपर साए के, इमाम हुसैन धूप में छाँव में उनकी लाश पड़ी थी। बहरकत उसका अलग मरहला था कि जानवर चरिंदे परिंदे जब आते सुबह को आते, सुबह को उड़ले जाते और करबला के अंदर क्या करते हैं मतलब परिंदे आको इमाम हुसैन की और करबला वाले 72 शहीदां के लाशों के ऊपर परा मार ले खट जाते करते। कब तक, असर तक। असर को ये ग्रुप जाती तो असर को घर को नहीं जाती थी, घर को खाना ले ले को बच्चा को खाना ले ले जाती थी, चुड़िया कबूतरा बच्चे परिंदे चुंगले को दाना ले ले जाते कहते वापस बच्चा को मुंह में डालना, वो टेम्पो मुंह में नहीं डालती थी कहते। इमाम हुसैन के पास आको खड़ जाते कहते, वो परिंदे पूछते कहते तुम्हें दाना ले को तुम्हारे बच्चा खिलाने जा रही है, तो हमें नहीं चाहते कि हमारे बच्चा को दाना चुगा। जब तक इमाम हुसैन की लाश मुबारक यहाँ रहती है, खुदा की कसम हमारा काम क्या था, तुम्हें दिन में करना ड्यूटी, हमें रात में करना ड्यूटी। बोलते नहीं दरिंदे उनको सभी क्या है मन में अक्ल नहीं है, परिंदे को अक्ल नहीं है, वो अक्ल नहीं सो तो भी क्या है कई को रहते परिंदे, उसमें परिंदे में से एक परिंदा बोला करता है कई को तू ये ड्यूटी हमने दिया करके बोलो तो बोलता कहते है मैं मदीने का था, कबूतर शायर मैं मदीने का था, मस्जिद नबी में बैठा था, मस्जिद नबी में बैठता था, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनता था, मैं बातें सुनता था। ये एक दफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा जहरा के घर को गए, मस्जिद नबी फातिमा का घर वहाँ से घर को जाको बोले मेरा हसन हुसैन नहीं ना, मेरा हसन हुसैन नहीं ही ना, कहीं जहरा का है। बोलती इनके अब्बा वहाँ सामने मैदान में खेलने बुला ले जा कोई हो क्या कर को बोल को रसूल चल रहा, खड़ी धूप, मौला अली मुश्किल कुशा एक झाड़ के किनारे बैठी छाँव में, हसन हुसैन धूप में खेल, किस में खेल रही, रसूल गए कि नहीं, मौला अली के पास गए कि नहीं, कभी भी जिंदगी में अली को बड़ी आवाज से नहीं बात करे, बोला अली अली खौफ खा गया कहते, कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी मोहब्बत से पुकारने वाले आज गुस्से से अली को पुकारे ना तो अली हदर के कहते, अली जैसा हैदर करार हदर ना तो मामूली चीज नहीं, या रसूलुल्लाह क्या बोलते, क्या गुस्ताखी होगी, समझ में नहीं आ रहा, इतनी धूप में मेरे बच्चा को खिला रही ना, तुम्हें बच्चा को खिला रही सो, क्या कर रही सो, खिला रही सो, खुश करा रही सो, खेल रही तो खुश हो रही ना, बोलती मैं तो खुशी ना करा रहा हूँ सो, मंजे गवारा नहीं देता, तुम्हें खुश भी करा रही, उनको धूप में नहीं पड़ा दे रहा। मौला अली मुश्किल कुशा जारो खतार का हाथ पकड़ ले वो सरकार द्वारा उनका रोती कहते, सरकार भी रोती कहते,
पूछती कहते सरकार में अली कई को रो रही, या रसूलल्लाह तुम ना तो मालूम ना हर चीज़, या अली तुम्हें बोलो, बोलती तुम ना भी मालूम ना तुम्हें मदीनतुल इल्म ना तुम्हें दरवाज़ा ना, बोलती कहते या रसूलल्लाह हमें वो वक्त याद कर रहा हूँ जिस वक्त हुसैन की लाश बिना साए बिना इसके अंदर धूप के अंदर पड़े रहते ना, वो टाइम पर तुम्हारे ऊपर कितना दुख हो, मैं खुशी से खिलाया तो तुम्हें नहीं देख रही ना, तुम्हें इमाम हुसैन की लाश 40 दिन ऐसा पड़को रहते हैं, तुम्हें देख सकती क्या करते, बोलती कहते हैं मेरे ऊपर बड़ी अजियत होती है, मेरे ऊपर दुख होता है, मैं इतना दुख होता है कि मेरे इमाम हुसैन की लाश अगर पड़ी, उनके बच्चा के लाश ऐसा पड़े, उनके छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े पड़को ही ना, वो टाइम को कितना दुख होता थे ना रसूलुल्लाह को कितना दुख होता नहीं का। वो परिंदा बोलता कहता है मैं ये वाक़या देखा, मैं अगर छूं दिया तो इमाम हुसैन की लाश के ऊपर, उनके बच्चा की लाश के ऊपर, क़यामत के रोज़ मेरी ये काम के वास्ते अल्लाह के रसूल के पास मैं मुंह दिखा दूँ, और मुंह दिखा को क्या कर दूँ मालूम, मेरी शफात नहीं पूछता, जानवरों के ऊपर लाजिमिश नहीं है शरीयत, मेरी शफात नहीं, जो मुझे पालिया था, जो मुझे दाने डालिया था, खुदा की कसम वो दाने डालने वाले की शफात पूछ ले तुम क्या। उसके वास्ते आज भी मदीने के कबूतरां को, करबला के कबूतरां को दाने कहीं को डालते मालूम, तुम्हें ये समझ लो खाली दाने चुपके, ये कि दाना भी अगर वो कबूतर उसकी औलाद में खा को रहा तो नहीं, वो कबूतर दुआ कर डाला तो कहीं को दुआ फ्री में नहीं, दुआ करने के वास्ते अमल कर को है, उनके बाप दादा क्या कर को ही अमल, क्या कर को ही 12-12 घंटे खाली मार ले पैसा खड़ी इमाम हुसैन के बच्चा की लाश के ऊपर, क्या करी खड़ी ऐसा, फिर वो 12 घंटे करी, अमल करे तो दुआ होती सो, क्या होती सो, अमल करे तो दुआ देता सो, अमल नहीं तो दुआ नहीं। तुम्हें क्या सोची, तुम्हें यहाँ आ जाको तुम्हारे बच्चों को घरा में छोड़ा को, तुम्हारे पूरे हुंसूर के मुरीदान मशहूर के मुरीदान को छोड़ा तो पूरे के वास्ते दुआ करते रहो बेटा, तुम्हें खुद अपने आप को अमल करे तो तुम ना दुआ, अमल नहीं करे तो क्या होती है मालूम, सीधी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बदवा है, सो बदवा, तुम्हें बदवा में अटको ना को, दुआ में अटको, क्या है दुआ में अटको, और दुआ भी फ्री में नहीं आती, जब तक अजर नहीं होता वो नहीं होता। ये अजर की महफिल, कौन सी महफिल, अजर की, इंशाल्लाह आने वाली चैनम कब है देख लो डेट, इंशाल्लाह हाँच कर लेंगे चैनम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मजलिस हाँच कर लेंगे। अल्लाह ताला इमाम हुसैन के सदक़े, इमाम हुसैन के बच्चों के सदक़े अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमने 12 हादी कहते दिया सो, और याद रख लो, ये भी कान खोल को सुन लो, ये तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं हो सकता है, सभी दुनिया का हर काम भी अल्लाह ताला इख्तियार दिया, इंसान को इख्तियार दिया, अच्छा करो या बुरा करो, मगर ये 12 इमाम को ऐसी ताकत दिया है। और साथ में गौसे आज़म उनके औलाद बोलती है, मेरी मुट्ठी में सारे जिन और इंसान के दिल, मैं जिसे चाहूँ मेरी तरफ माइल कर दूँ, जिसे चाहूँ मेरे से दूर रख दूँ, उन्हें अपनी मर्जी से मेरे तरफ नहीं आता, किसकी अपनी मर्जी से मेरे से जाता नहीं, किसे वो कौन बोले सो, कौन बोले सो, गौसे आज़म फरमाती कि मेरे पास आना रहा तो भी मेरी मर्जी से चाहता सो, मेरे साथ में जाना रहा तो मेरी मर्जी से। जब इमाम हुसैन के बच्चों में से गुलामों में से इतनी ताकत देख रहा तो मेरे हुसैन के पास कितनी ताकत रही, मेरे हुसैन के बच्चों के पास कितनी ताकत रही। जब तुम्हें गौसे आज़म के पास जो उनके अदना सा इमाम हुसैन के गुलाम होने के बाद दिमागों को कंट्रोल करने की ताकत रखती, जिसे चाहे बुला लेती, जिसे चाहे छोड़ देती, तो क्या समझी तुम्हें हुसैन की महफिल में तुम्हारी मर्जी से तुम्हें हाथ देते सो, तुम्हारी मर्जी से आते सो। याद रख लो, गलीजी, गंदगी, बुराई, आलूदगी कभी भी अहले बैत की तरफ नहीं आ सकती। अगर तू नहीं आ रहा है तो सोच ले, तू गंदा है, तू बुरा है, तू हलाली नहीं है, तू हरामी है, तेरे पास गंदगी, आलूदगी, बुराई, गंदगी बस को है, उसके वास्ते अल्लाह ताला अहले बैत की तरफ तुझे नहीं बुला रहा। कान खोल को सुन लो, अहले बैत की तरफ नहीं बुलाने का मतलब क्या है अगर को बोले तो हमारे में नजिस है, टांकी नजिस ही हमें, हमारा ईमान नजिस है, हमारा बुराई है, हमारे में हमारी गंदगी है, हमारे में गुनाह ही, उसके वास्ते हमें वो तरफ नहीं आनी। और आ रही तो समझ जाओ अल्लाह ताला हमने पाक करे, क्या करे को अल्लाह पाक करना चाहता है और पाकी में रखना चाहता है। अगर को बोला को अल्लाह ताला नूर की महफिल में नूर वाले को बिठाता, नूर की महफिल में नूर वाले को बिठाता सो की कर को बोले तो दूध में भी अगर बई को मामूली से तुम्हारे बई को ले जाको 2 लीटर दूध ले जाको, वो गई वाला ले जाको निथार को ले लगा डालिया तो उन्हें बर्तन ले लगा देती है, कौन सा बर्तन लग देती है, कौन सी कहीं को गलकश लग जाओ जी हलीमा पा
نہیں پرسوں کا لے جاؤ پھٹ جاتا ہے کہیں کو تمنا عقل ہے دودھ بچانے کے واسطے 60 روپے لیٹر کا دودھ بچانے کے واسطے پاک شطر لے لے کا نہ تو اللہ تعالیٰ کو عقل نہیں ہے کہ اہل بیت کو بچانے کے واسطے کسے کسے بلانا کسے کسے نکالنا وما لینا الا البلاغ